Okay, I hope I am audible for all of you. Yes, you're audible. Yes, sure. All right, great. So let's start. So hi guys, my name is Rabia Salman. Let me tell you a little bit about myself, and then let's do a brief introduction about what you guys do as well, so that we can have an understanding of what sort of students are there in the class. I would request if you are not speaking right now, please mute yourselves. I think किसी का mic on है. Thank you. So, a little bit about myself. I have done my bachelor's in computer science and I've done my master's in business analytics. In terms of my professional work experience, I have an overall of 5+ years of experience where I worked 3 years in the startup ecosystem. And I worked with companies such as like Retailo for 2 years as a BI analyst. Then I went and joined a startup in Lahore called Pattern Technologies, where I worked in the sales department because it was Horeca. So I don't know if you have an idea about how sales run in the Horeca segment, but basically we were a SaaS company. And then I worked in the Horeca industry for almost 1.5 years before I actually joined my current company, that is Engro Fertilizers. I work here as a deputy manager, business analyst. It has also been 2 years to me in this company now, almost, yeah. So overall, I will now be stepping into my 6th year. So uh, give me a second. Sorry. Yeah. So as far as my teaching experience is considered, I've been teaching for almost also 2 years. Ever since I graduated from Engro, I took up, some teaching gigs. I am also a visiting faculty at KSBL, where I've done my master's from. Taught that 2 semesters to MBA, executive MBA, and business analytics students. So have a vast experience of of this entire field. Love teaching. You will find it eventually that I am very passionate about this, and I will tell you more about as how the technology is evolving. So you'll find a lot of funny examples that I'll be giving. Some of it would be pertaining to some TV shows, some to movies, some of course to the different levels of technology we have in the system. Well, it's going to be a fun and adventurous boot camp of 2 months. I would first love to know more about you. That what are you currently doing? Where are you working at? What's your expertise? So that I can just have a general idea of where we all stand. And the way I will take this orientation session is that after your introductions, I will walk you through the agenda that I have planned. It's mainly the course structure that we're going to be covering in the 2 months. I'll walk you over it, and then I have a very small presentation, not too much because of course it's just the orientation session, to give you a holistic idea of what AI, data analytics, business analytics is, what's the difference between all of them, and how we are just going to take it forward from there. So 2 3 things that we have to cover in today's session. You can just very randomly go for introductions, or we can just follow the sequence that Google Meet is proposing. I think it's in alphabetical order. So I think Alina, if you would like to go first, let's just take it from here. Hello, how are you, Rabia? I'm good. How are you? Yeah, I'm good. So my name is Arina Sayed, and I have 2 years of experience in HR department. Right now, I'm working as an assistant manager HR in Dowd Foundation, and my purpose to join this course is to learn. Basically, I research about the HR analytics course, but when I go through this course, I found that this is the basics of SQL's Power BI. So I think first I learn about these things and then I'll deep down to the towards the HR analytics course. That is why I joined this session. Okay. So you are currently working at Dowd Foundation. Yeah, Okay. Thank you, Alina, for sharing that. thank you. Then we have Amar. Amar, you are not Yes, on. sure. Hello, Rabia. How are you? I am good, Amar. I'm Amar Jafar. I'm currently doing Bachelor of Science in Economics from National University of Science and Technology, NUST, and I'm expected to graduate in 2028. And I will be soon taking data analytics as my specialization. I have worked with tools such as Tableau, and I will have a new experience with Power BI in this bootcamp.
I have a basic Python knowledge, but I have uh, worked with SQL intermediately, and I Okay. have also worked with automation tools such as Make.com. All That's right, a great. brief. Yeah, that's a great tool. So, anything else I need to say? No, no, I am actually also writing it down. So Okay, okay, that sure. I have an idea of, what your interests are, because the data sets that we're going to be working with should also be something that, you guys are interested. Sure, So sure. yeah, Thank yeah, you that's so why, much. I wrote Alina is into, HR. You are, someone who has done economics. You now want to step into data analytics. So, Sure, sure. That's we can great. work with that. Yeah. Yeah, yeah. Okay. Then we have another Amar. That's Amar Raza. Amar, are you here with us? Okay. Next we have Hamza. Hello, Assalamu alaikum. I'm Hamza, Welcome. and I'm a CA finalist. Oh, I'm wow. working. I'm CA finalist. I have done my articleship, and now I'm working as an assistant manager finance at a local company here in Peshawar. It's the tobacco industry. Alhamdulillah. Okay, so you are working as AM financial analyst, No, finance manager. finance manager. Okay, great. Yes. Tobacco industry. Have we heard about this company? Is it bad PMI or like something else? No, it's a local company. It was a trader, and now it have a manufacturing unit. It also has a manufacturing unit in UAE Okay. with the name of Smart Tobacco. Here it's Jason Traders. So they used to trade with the Khyber Tobacco, if you know about it, KTC. So it's basically a local company. You might not have heard of it. Yeah, no, but thank you for telling all of this. I find tobacco industry very fascinating. And that's why I asked you the Okay. questions, because we'll talk about it when we're like doing the analysis part of things. But just to put my thought across, it's basically, when you are doing sales and you're looking at GMV, the volume is great for tobacco industry. So Yes. last mile, everything, when you look at it, it's a great product in terms of it, because it's so small in size that it can easily be moved from point A to point B. So if you are Yes. carrying a carton, it can cover a lot of items in it, as compared to any other FMCG who has various volumes and different SKUs. So they have to Mm. plan out their GMV and their last mile in a very different way. So Yes. always a very fascinating part to talk about, how people are doing their businesses. But Yes. Yes. thank you for sharing that. So then we have Thank you. Iftihaj. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. Uh, okay, my name is Ittihaj, and currently I'm working in SciLife Pharmaceuticals as assistant manager commercial services. So basically, my roles includes in logistics, sports, inventory management, sales analysis. That's all for support function of sales. Basically, it's for international business. Okay. So, if I have to write high-level words, I think logistics, sales, operations are something that you are currently doing and are also Yes, interested. Are you also interested in the operation supply chain like segment? yes, this that is the part of my job basically. Uh, Okay. No, no, but does it excite you, like yeah, supply chain? yes. Okay, great. Okay, best. Thank you, Iftihaj. Then we have Mariam. Mariam, are you with us? Okay, moving on. Then we have Arsalan. जी अस्सलाम वालेकुम Walaikum Assalam.
My name is Aslan, and I'm basically a senior product engineer working at 9D Technologies, where I'm involved in basically developing and improving mobile applications which have been used by millions of users globally. We have around 200 plus applications on App Store and Play Store as well. So, and in addition to that, I'm a public speaker as well, and I basically mentor startups at National Incubation Center for Aerospace Technologies, where I basically work on the app development and building data-driven products. And I also am interested in this basically course because I want to strengthen my skills in data analytics, since it's a very important part of my daily work, and I want to make better decisions for my, not only for my products but also the startups which I'm mentoring currently. So that's why I joined this course. Yeah. Amazing. I think, Arsalan, it's going to help you a lot when you understand how to look at data from, a very bird's eye view, and how do we actually, work with a thought process of analyzing the data. Because when you said that you're a public speaker and, you mentor other people, I think when you have your own, brain working like that, it's easier to communicate and help out other people in that regard as well. So Yes. I think that you are going to find this course exciting, and I hope that you learn a thing or two from it as well. I'm always open to feedback. So if there's something in particular that you're looking to learn or just ask about, I'm also very approachable. So you can just drop me a message and we can have a conversation about it. Sure. Thank you. Yeah. So then we have Noor. Hi, Rabia and everyone. Am I audible? Yeah, you are. No, thank you. So, my name is Noor, and I completed my bachelor's last year in economics from LUMS, and I currently work as an associate in client services at Athenium. It's an advisory firm, and I am primarily taking this course because I would like to, eventually move into a more data-focused role where I can combine my economics background with analytical skills. And as far as the course is concerned, I would like it to be taken to a beginner level because I have essentially worked with Stata only, which I believe is outdated by now. Yeah. And all the tools listed, I don't have much experience with that, so I would definitely like to hone my skills within that category. So yeah, I'm excited to learn and work with all of you. Great, Noor, thank you. Just a quick question. You said that you are working as an advisory No, I'm working as an associate in client services. in client services. Okay. Yes. So do you use any software right now? Um, uh, related to data or something? Yeah, related to data, like maybe Mm, Excel or anything, no? no. Okay. So and I understood when you said that you wanted to be taken from beginner level. So just wanted to understand that if you are using something, so it would be easier for me to also understand. But Got we'll it. take it from scratch, not a problem. Got it. But yeah, that's my point that I want to pivot towards a more, different Yeah. role. Okay, I understand. Yeah. Yeah. Then we have Saad. Hello, Assalamualaikum. Am I audible? Yeah, you are audible. Okay, so I just graduated from CBM, Okay. Logistics and Supply Chain. So as such, I'm not employed yet, but I was able to secure a sort of an internship or training period with Maersk as a customer experience associate. So I have about 8 weeks of training pending, which is yet to start, and probably after that I will assume the role. All right. Thank you, Saad. Then we also have another Saad. Oh, wow. Saiget, Saad, do we have you? Yeah, Yes, how are you, Rabia? I'm good. Yeah, Rabia, so my name is Saeed Saad and I'm from Karachi, Pakistan. And I've done my bachelor's in management from Berkeley University. And it's been like almost 3 years I've been working in the domain of HR as an HR executive with a Qatar-based organization. And the reason why I joined this course is because I really want to learn about business intelligence or business analytics, and I really want to work in the future either in HR analytics or as a business analyst. So yeah, that's why I'm here in the course. All right. So, Saad, you're based in Pakistan? Yes, I'm based in Pakistan. All right. So, I think, got it. Thank you, Saad. So, I think all of you are based from Pakistan only. We don't have anyone from any other country, right? Just want to understand, because then we'll carry our courses in one language. If there's someone who doesn't understand Urdu, so we won't be speaking in Urdu at all. But I think most of you are
from Pakistan only. So that's a great sign. So one time I actually had to conduct an entire boot camp in English. So that's why I'm like asking beforehand. So, all right, guys, thank you for sharing so much about yourselves. It was lovely to know where you all are currently working and what your background is. Of course, with time, we will understand each other more in a different capacity. It's also, always fun to engage with other people and learn from their experience, like, what are they doing, and always, where businesses are standing. If I don't know if you guys are interested in, stock exchange. So that is why I always have, I'm a very curious person that, which business or which industry is booming right now, which is not, which is, a great place to invest your money in. So that's why, I'm always into networking events. And about this course, with whatever I've learned so far about you all, I think जो हमारा एक theme निकल के आई है, that is HR. We have supply chain, we have economics and sales, right? So our data sets will also be pertaining to these categories, I would say, because it's easier for you to understand and interpret data in a different way. अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा उस डेटा सेट के अंदर, तो फिर आप लोगों को समझने में भी मुश्किल होगी. So like for example, there's only I think one person who's from finance. So अगर मैं कोई बहुत ही ज़्यादा financial data लेकर आ जाऊंगी, तो he would be of course having fun with it, but you guys on the other hand will not enjoy it, and a lot of different terminologies come into play. So most of you will not understand that what we're talking about, what is maybe contribution margin, what is NPV, right, account balance statements वगैरह अगर मैं लेकर आ जाऊँ for data sets, then it will be difficult for you to even have your interest in that part. So we will keep it like this कि हम data sets जो है वो अपनी industry के हिसाब से ही use करें. For now, the course, before I jump into the outline and everything, so guys, it's of course of 2 months. There are 2 classes per week, Saturdays and Sundays, 12 to 2 p.m. And I think it's a good enough time where, it's also not very early in the morning, not late in the evening. So you can always, take out time for it. I understand that, there are personal commitments and, sometimes you might not be able to attend the class. I also let you know beforehand that, this is something that we are going to be covering in the class. So अगर भी बहुत important concept होता है, I usually recommend that you don't miss out that class. Even though, of course, the recordings will be shared with you. But if you miss out the concept, then, it will be difficult for you to follow up, because then you will have to watch the entire recording of 2 hours, right? So if you have that determination and focus for yourself, where you are okay with watching the recording, but I would also not highly encourage that, you depend on recordings too much, क्योंकि हम लोग क्लास में बहुत सारे concepts पढ़ रहे होते हैं, and वो फिर आपको थोड़ा सा वहाँ पे मुश्किल होगी. 1-2 classes make sense, but ट्राई करेंगे थोड़ा सा जो है ना, स्पेशली विद पावर BI SQL जो हमारे मॉड्यूल 2 और 3 होंगे, वो मैं आपको आउटलाइन पे भी बताऊंगी, दैट उसके कॉन्सेप्ट्स जो है ना, वो फिर हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है समझाने के लिए भी ना. सो बूट कैम्प, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, इज लाइक अ क्रैश कोर्स. अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे जाके कभी सर्च किया हो तो उसमें क्रैश कोर्स आ जाता है, विच इज ऑफ वेरी लॉन्ग आवर्स. वो तो मुझे कभी समझ नहीं आया पहले भी, लाइक 10 hours 8 hours, एंड पीपल टीच यू द एंटायर कॉन्सेप्ट्स इन वन गो. So हम ऐसे नहीं करेंगे. I will also not overwhelm you. Not any one of you is from a technical background, so it means that our classes will be very basics. I'll teach you guys in baby steps on how we have to conduct a particular step. आहिस्ता आहिस्ता हम हर step को लेके चलेंगे. I usually have a tendency to speak a little fast. Like my communication is clear. Like my words will be clear to all of you, but हो सकता है कि मैं जिस तरीके से बात करूं वो आपको लगे कि मैं शायद तेज बोल रही हूँ. तो अगर आपको कोई ऐसा इंस्टेंस लगे दैट मैं आगे निकल गई हूँ, आप पीछे रह गए, या मैंने कोई ऐसी बात बोली है जल्दी में जो आपको नहीं समझ आए, तो प्लीज फील फ्री टू स्टॉप मी ओवर देयर, राइट? ऑफ कोर्स यू आर आल्सो पेइंग फॉर दीज क्लासेस, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इसमें से कुछ हर क्लासेस सीख के जाए, ठीक है? बाकी मैं बहुत ओपन हूँ फीडबैक के ऊपर. अगर आपको कोई सजेशन देना है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, सो आई वुड रिकमेंड दैट यू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद मी अबाउट दैट. ऑफ कोर्स हम लोग क्लास के अंदर इस सबके सामने इस तरीके से डिस्कस नहीं करेंगे, बट यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज एंड वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट. इफ द फीडबैक इज पर्टेनिंग टू द कोर्स आउटलाइन या कोई कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं समझ आया, वो हम क्लास के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? सो इस तरीके से वील ट्राई टू हैव अ वेरी ओपन कल्चर अमंगस्ट ऑल ऑफ अस. ठीक है जी?
ये तो कुछ हमारे स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं बूट कैंप के, जो मैंने सोचा मैं आपको पहले बता दूं, so that we are all crystal clear that how do we have to speak with each other, and we have to also maintain decorum in our classes. If you are opening your mic because other people will then get disturbed, तो प्लीज थोड़ा सा ये नोटिस कर लीजिएगा. यूजुअली जब हम लोग क्लास को ज्वाइन करते हैं तो हमारा माइक ऑटो पे भी जो है ना वो ऑन हो जाता है, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है. इफ यू आर नॉट स्पीकिंग प्लीज कीप योर माइक्स ऑन म्यूट, ठीक है, क्योंकि फिर मैं भी उससे डिस्टर्ब हो जाती हूँ तो मेरे भी चेन ऑफ थॉट्स वहाँ पे जो है वो फिर लॉस्ट हो जाएंगे. I have no problems with you guys not opening the videos. I understand it's weekend, not everyone is dressed up. However, in our last class, we'll take a picture. So उसमें फिर हम सिर्फ अपनी वीडियो जो है वो ऑन करेंगे. If you want to do it, you want to be more attentive in class and open the video, completely your call. मेरी तरफ से कोई यहाँ पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने वीडियो ऑन करनी है. जस्ट इन द लास्ट क्लास व्हेन वील टेक अ ग्रुप पिक्चर, बिकॉज हमारा तब तक एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बॉन्ड बन चुका होता है. And of course, it's always very emotional in the end, when a boot camp is ending, because you have worked on the relationship together, right? So I hope यहाँ तक किसी का कोई सवाल अगर कुछ है तो पूछ लेंगे. थोड़े से general guidelines वगैरह होती हैं classes की, so I always inform the students beforehand. सही है? Any questions so far? No? Okay, great. ओके, सो जस्ट वन थिंग, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे आज तो हमारा कोई ऐसा थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं है. फ्रॉम नेक्स्ट वीकेंड वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग आवर हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस एंड एवरीथिंग. सो व्हेन आई जस्ट आस्क्ड यू गाइस लाइक हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा वील हैव सम थम्स अप सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड विद इट. अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आएगी तो आप लोग माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? सो मुझे भी समझ आ जाएगा कि किसको नहीं समझ आया, किसको समझ आ गया. एंड ऑफ कोर्स आई ट्राई टू टेक एवरीवन ऑन द सेम पेज. तो अगर किसी को जेन्युइनली कोई चीज नहीं समझ आई है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं. देयर आर नो डम क्वेश्चंस इन दिस क्लास. whatever you don't understand, feel free to ask, ठीक है? अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन डम है तो हो सकता है वो दूसरे बंदे के लिए भी वही सवाल हो. they might not have the guts to ask that question. So सबका एक ही thought process होता है, it's just human nature. So if you feel like you don't understand anything, just ask me questions, right? And I'm a very patient teacher, so even if you ask me 10 times that you don't understand, I'll find a different way of explaining it to you, ठीक है? Because हर किसी की same wavelength नहीं होती, तो अगर मुझे किसी तरीके से मैं एक चीज को परसीव करूँ और अंडरस्टैंड करूँ तो हो सकता है आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो उस चीज के लिए. सो वी कैन हैव व्हाटएवर क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, हम उसको बिल्कुल टेक इन करेंगे. एंड जितनी दफा आप सवाल पूछेंगे उतनी दफा एज अ टीचर आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस, सही है? यू विल आल्सो अंडरस्टैंड इवेंचुअली that I am very flexible, very friendly, so inshallah you will not have a problem in asking questions, and आप लोग hesitate भी फिर वहाँ पे नहीं करोगे, ठीक है? So अब यहाँ तक I think we are all clear. Let's talk about the course outline. So let me share my screen and हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. Okay, I hope that you can all see my screen. So yeah, I've been teaching this course for almost a year now, so that is why the outline is also something that I've been following for the longest of time. But थोड़ी सी चीजें हैं जो मैं क्लास में एक्स्ट्रा पढ़ा देती हूँ या इसमें लिखी भी नहीं होती, तो वो ऑफ कोर्स वो हम क्लासेस के साथ साथ देख रहे होंगे. सो देयर आर 16 क्लासेस. इसको मैंने मॉड्यूल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. सो वी हैव 4 मॉड्यूल्स इन टोटल. आज की क्लास हमारी ओरिएंटेशन की होती है, तो हम थोड़े से फंडामेंटल्स वगैरह डिस्कस करते हैं. सही है, अभी हम उस पर प्रेजेंटेशन पे भी आएंगे तो विल हैव अ कॉन्वर्सेशन अराउंड दैट. सेकंड मॉड्यूल जो हमारी नेक्स्ट वीकेंड की क्लासेस जहां से किक ऑफ होंगी, दैट इज गोइंग टू बी एक्सेल, ठीक है? सो एक्सेल के अंदर आई यूजुअली प्लान 3 क्लासेस, बट मेरी 4 चली जाती हैं यहाँ पे, बिकॉज हर किसी का बैकग्राउंड भी नहीं होता, तो मैं थोड़ा सा इसको खुद भी इवेलुएट कर रही होती हूँ कि मैंने कितनी क्लासेस यहाँ पे करानी है, ठीक है? बिकॉज वी हैव 16 इन टोटल, सो प्लस माइनस मैं थोड़ा सा मॉड्यूल्स के हिसाब से कर लेती हूँ, बिकॉज एक्सेल इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट. सो अगर आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट लर्न होगा, इट मीन्स दैट यू विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू रेप्लिकेट दो स्टेप्स इन पावर BI, ठीक है? बिकॉज वो भी उसी से एक तरीके से कनेक्टेड है. सो फिलहाल के लिए देयर आर 3 क्लासेस. In the first class, we are going to be talking about, some calculations, जैसे basic functions होते हैं. So sum, count, average, minimum, maximum, if, and, or functions. Of course, बहुत सारे functions होते हैं Excel के अंदर. So सारी चीजें तो अगर हम लोग क्लास में नहीं कवर कर पा रहे होंगे,
So I will give you some platforms, some websites where you can also learn and practice on your own. And I'll also give you some other data sets to practice ताकि आप लोग अपना खुद से भी hands on उसके ऊपर बना सकें. So in the first class, we're going to be learning about Kaggle. It's a data science community जहाँ से हम लोग अपने data sets को download कर रहे होंगे. I'll give you an entire very thorough walkthrough of that entire platform. And उसके बाद फिर हम वहाँ से data set को download करके उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो द फर्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी अबाउट एक्सेल. I think I have 2019, but if you have the latest version, that's fine as well. बहुत previous version अपने पास नहीं रखिएगा. Like for example 2010, 2013, just don't have those Excel versions with you, क्योंकि फिर उसके अंदर बहुत सारे functions होंगे जो नहीं चलते. जैसे even I think 2019 के अंदर मेरे पास शायद X lookup नहीं चलता. So I use Google Sheets for my own analysis, but before this class, I think I'll just upgrade it to the latest version as well. So मेरे पास Microsoft का setup है, it's a cracked version. I will upload it on a Google Drive. So हमारा सारा material Google Drive के ऊपर upload होगा session by session. उसके अंदर मैं सॉफ्टवेयर के अंदर Microsoft Office का setup share कर दूंगी. Cracked version है तो पासवर्ड उसका है, पासवर्ड उसका ऑफिस ही है in all small letters. सही है. I'll drop a message on the group as well. In case if you don't have it, then you can install it. वो मेरे पास I think Microsoft Office है, which is either 2021 or 2023. ठीक है. So वो आप अपने पास देख लीजिएगा और उसको अपने पास install कर लीजिएगा. So first class is going to be about Kaggle, right, and some basic data analysis, जिसके अंदर हम लोग data cleaning वगैरह करेंगे. So data cleaning हमारी इन्हीं formulas के थ्रू होती है, right, जैसे कि if, and, or, तो वो हमारे इस तरीके से उसके अंदर cover हो जाएंगे. Now the second class over here I have written is VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, left, right, and all of this, right? So ये तो हम of course पढ़ेंगे, but इसके साथ जो हमारी first file जो हम continuation पे होंगे, हम actually यहाँ पे pivot tables पढ़ेंगे. So this will be more about pivot tables and how to create a dashboard on Excel, right? So थोड़ा सा हम class के momentum के हिसाब से भी देखेंगे. अगर pivot table and dashboard एक ही class में हो सका तो well and good. अगर pivot table और dashboard एक class में नहीं हुआ तो we might have to divide it into 2 classes. ठीक है. So क्योंकि फिर जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोग के सवालात भी आएंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारी चीजें एक ही क्लास में कवर हो जाए. तो फिर हम उसको देख लेंगे किस तरीके से हमने इसे लेके चलना है. बट हम इसको ओरिजिनल एजेंडा जो हमारा है क्लास का कि हम इसमें VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP ये सारी चीजें पढ़ें. एंड इसके ऊपर फिर हम लोग जो है वो पिवट टेबल्स एंड डैशबोर्ड भी अपना बना लें. ठीक है. लेफ्ट राइट हमारा सब यहाँ से टेक्स्ट क्लीनिंग के अंदर ही कवर हो जाता है. सो क्लास 2 and 3 इज वेरी हैंड्स ऑन वेयर वी आर गोइंग टू बी लर्निंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ एक्सेल. एंड हम उसमें एक डेटा एनालिसिस उससे उसको बिल्कुल डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनल वर्जन हम उसका एक डैशबोर्ड देख रहे होंगे. ठीक है. Now we have the fourth class on scenario analysis and what if analysis. This is finance, I think, financial management on Excel. आप लोग का इतना ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट इसमें नहीं है, so वो हम लोग लास्ट जो हमारी थर्ड क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे that do you want to proceed with the financial bit of it or not. If not, वैसे इसके अंदर मैं गोल सीक, सॉल्वर एनालिसिस, सम टर्मिनोलॉजीज आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिएगा. इंटरेस्ट हुआ तो मैं थोड़ा टच एंड गो इसके ऊपर हम लोग फिर ऐसा कर लेंगे कि कर लें. बट यहाँ पे फिर यूजुअली क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इतना नहीं होता, सो आई ऑल्सो गिव यू दिस ऑप्शन कि हम यहाँ पे काउंट इफ, सम इफ्स, इस तरीके के जो फार्मूलाज होते हैं, एवरेज इफ, काउंट यूनिक इफ, हाउ टू ऑटोमेट अ रिपोर्ट इन एक्सेल / गूगल शीट, you know, how to make a data filter, you know, for date, कि हम उसमें डेट के हिसाब से पूरे डैशबोर्ड को या रिपोर्ट को ड्राइव करवा सकें. लिटिल बिट ऑफ ऑटोमेशन ऑन दैट पार्ट. तो फिर वो हम अपने सेशन 4 के अंदर कर रहे होते हैं. तो हम यहाँ पे एक क्लास का कंसेंसस ले लेंगे वेयर दे वांट टू लीन टुवर्ड्स एंड हम उस तरीके से इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे. ऑफ कोर्स दिस इज अ क्रैश कोर्स रिपीटिंग अगेन, तो आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर एक्सेल की डिटेल वर्किंग या सारी चीजें नहीं नजर आ रही होंगी. तो जैसे अगर आपको मैक्रो सीखने हैं या VBA सीखने हैं, so this is not the boot camp for that. आपको सीखने हैं तो आप बिल्कुल मुझसे पूछें, मैं आपको उसका रेलेवेंट मटेरियल, कंटेंट, यूट्यूब वीडियोस निकाल के शेयर कर दूंगी. बट क्योंकि क्लास में लोग बहुत बिगिनर लेवल पे आते हैं तो मैं अपने जो मेरे मॉड्यूल्स हैं उनको बिल्कुल एडवांस वर्जन पे लाके ड्रॉप नहीं करती. आई यूजुअली स्टॉप एट द इंटरमीडिएट लेवल
एंड इंटरमीडिएट के बाद मैं रोड मैप या पाथ जरूर बता देती हूँ कि आप एडवांस तक कैसे पहुंच सकते हैं, बट वो फिर आपका खुद का ओन पेस एंड ओन लर्निंग एक्सपीरियंस है. ठीक है. एनी क्वेश्चंस ऑन द एक्सेल मॉड्यूल? No, I think sounds good. ठीक है. Okay, so then we have our third module, that's Power BI. So usually लोगों का interest भी सबसे ज्यादा Power BI के अंदर होता है. We have 4 classes, which means 2 weekends for this, right? So इसके अंदर हम लोग जो हमारी first class है, of course I'll tell you the theory as well, like what is data visualization and some tools about how we have Tableau, we have ClickSense, we have ClickView, we have Amazon QuickSight, and different tools for visualization as well. So I'll give you some theory about it. We'll learn about what a scope document is, हम किस तरीके से एक dashboard को plan out करते हैं, हम KPIs define करते हैं. We'll learn about some basic transformations कि हम इसको किस तरीके से data cleaning कर सकते हैं. So yeah, this is a concept of a Power Query editor, which is also linked to Excel. So ये हमारी चीज वहां से in continuation पे आ रही होगी. ठीक है. So first class is about how we can create a very basic dashboard, just drag and drop. We might just use an own data set for it. And then our actual journey starts from the 6th class, which is of Power BI, where we're going to be now learning about data modeling. So data modeling we will learn about primary keys, foreign keys, what is a star schema, what is a data model, how can we make relationships, how we can, make a model. So हम ये सारी चीजें जो है वो 6th class के अंदर सीखेंगे. This one is very important, followed by a 7th class as well, which is about DAX. So if you have very briefly worked in Power BI, or if you have a general idea as well, so DAX is a very important concept. So जो calculations हम लोग Excel में formulas के through कर रहे हैं, Power BI has its own bit, right? So हम अपनी वो working पे Power BI के ऊपर कर रहे होंगे. Then we will have some advanced concepts of Power BI, which is the 8th class. So over here, we are going to learn about data drill down. We're going to learn about hierarchies. We're going to learn about, how to set up refreshes, how to publish a dashboard, how to work with row level security and everything, right? So यहाँ पे हमारे पास advanced concepts आ जाते हैं. So overall, we have 4 sessions on Power BI, which are more than enough to cover the concepts. Practice, of course, you will have to do on your end. कि आप इसको किस तरीके से लेके चल सकते हो. सही है? Any thought process, any questions on this part? सही है? Okay, great. Then we'll work towards our fourth module. So first आज हमारी orientation की class है, तो हम उसको basics में categorize करें. So first आज हमारा हो गया, then second Excel, third हमारा Power BI, and 4 is SQL. So SQL पे भी we have 4 classes, right? And this is the part where now you will start finding the course to be a little technical, सही है? Because अब हम लोग थोड़ा सा programming languages के ऊपर जिस तरीके से काम करते हैं वैसे ही काम करेंगे. So we are going to be working with VS Code. It's technical, so if you are coming from a non-technical background, you might find these classes a little dry for your taste. You might find them confusing. You might not understand what's going on. So that is why I would advise and highly request in a very humble manner that you don't miss out these classes, right? Because ये काफी technical है. So अगर हमने एक क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है और मैं सेकंड क्लास के अंदर आ गई हूँ, तो वो आपस में चीजें जो है वो कनेक्टेड होंगी, राइट? क्योंकि हम कोड लिख रहे हैं. सो ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है तो उसकी एक ही लाइन ऑफ कोड होगी. नो, आई हैव टू नाउ राइट एंड राइट अ कोड ऑफ 10 लाइन्स, 15 लाइन्स. तो वो कॉन्सेप्ट्स मेरे वहां पे आगे पीछे यूटिलाइज हो रहे होंगे, यूज हो रहे होंगे. सो इसलिए जरूरी है कि आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को मिस आउट ना करें. हमारे पास एसक्यूएल में भी 2 वीकेंड्स हैं जिसके ऊपर हम पढ़ रहे होंगे. सो फर्स्ट जो हमारा वीकेंड है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द बेसिक्स, जैसे सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, राइट? एंड हम इसमें ये इसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे जो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट होते हैं. व्हाट इज अ टेबल, व्हाट इज अ रिकॉर्ड, व्हाट इज अ की. थोड़ा बहुत आई टेल यू अबाउट डेटा नॉर्मलाइजेशन, बट नॉट टू मच इन डेप्थ, राइट? क्योंकि वो आपसे इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है. देन जो हमारी लास्ट 2 क्लासेस हैं, जो हमारा नेक्स्ट वीकेंड होगा एसक्यूएल के लिए, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट जॉइंट्स. सो जॉइंट्स इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एसक्यूएल, जिसके अंदर हम लोग लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, फुल आउटर जॉइन, राइट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे. एंड हमारा जो लास्ट क्लास होगी एसक्यूएल की, उसके अंदर हम लोग सब क्यूरीज पढ़ेंगे, जिसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे.
फिर मैं आपको जो रोड मैप है उसमें CTs के बारे में बताऊंगी और विंडो फंक्शंस के बारे में बताऊंगी. सो व्हेनेवर यू फील लाइक नाउ यू गाइज आर वेल वर्स्ड विद SQL या अब काफी हाथ बैठ गया है, अब आप कोड अपने अपने खुद से अपने ऑन योर ओन यू कैन राइट इट आउट, देन आप आगे एडवांस के ऊपर वर्किंग कर सकते हो. ठीक है. सो मैं वो क्लास में नहीं पढ़ाऊंगी, बट मैं आपको उसका रोड मैप या स्ट्रक्चर जरूर बता दूंगी व्हेनेवर वी आर एंडिंग आवर SQL मॉड्यूल. सो SQL के अंदर हम लोग जो यूज करेंगे दैट्स गोइंग टू बी SQL लाइट फॉर 2 क्लासेस, क्योंकि वो ऑनलाइन है. एंड लास्ट 2 क्लासेस के लिए हम यूज करेंगे VS कोड. आई विल गाइड यू ऑन हाउ यू कैन इंस्टॉल इट. एक्सेल मैंने आपको बता दिया, पावर BI सुपर इजी, पावर BI हम माइक्रोसॉफ्ट का ही है, डाउनलोड करेंगे और इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. नाउ आवर लास्ट मॉड्यूल, any questions on the SQL bit before I move towards the predictive analytics? Right? Clear? Any confusion? चाहिए. Great. So जो हमारा लास्ट मॉड्यूल है दैट इज अबाउट प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, राइट? सो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के अंदर वी आर गोइंग टू बी वर्किंग विद अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड Orange, and the other one is Nime, if you have heard about it, KNIME. It's very simple. दोनों एक्चुअली में कोई खास डिफरेंस नहीं है. The drag and drop. This is the part we are now going to be learning about machine learning. But हम लोग मशीन लर्निंग पाइथन वाली कोडिंग या कुछ एल्गोरिथम या हम वर्किंग नहीं करेंगे. हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ काम करेंगे जिसके अंदर ये सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी होंगी, एंड हम वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे ऑन ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट? सो उसमें हमारे पास डेटा ऑलरेडी क्लीन होगा, हमारे पास हमें पता होगा कि हमारा कौन सा फीचर है, कौन सा टारगेट है, और हम उसी तरीके से उसकी सारी वर्किंग करेंगे. ठीक है. सो दिस एंटायर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मॉड्यूल इज ऑफ 3 क्लासेस, जिसमें हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे. सो फर्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी अबाउट हाउ what is machine learning, how many types of machine learning are there, what are the algorithms, and हम वो सारी चीजें फिर एक थ्योरी के लेंस से डिटेल में पढ़ेंगे. फिर हम वही सारी वर्किंग जो है वो हैंड्स ऑन के हिसाब से करेंगे. तो मशीन लर्निंग में भी हमारे पास 2 टाइप्स है, वन इज सुपरवाइज्ड, द अदर इज अनसुपरवाइज्ड, एंड द थर्ड वन इज रीइंफोर्समेंट. तो रीइंफोर्समेंट तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उसकी वर्किंग करते हैं. हम यूजुअली सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की ही वर्किंग करते हैं. तो वी हैव सर्टेन एल्गोरिथम्स इन बोथ ऑफ दीज, राइट? सो हम उसको उसी हिसाब से पढ़ेंगे, एंड उसी एल्गोरिथम के साथ फिर हम उसकी डेटा मॉडलिंग भी करेंगे और पूरा मशीन लर्निंग का मॉडल बनाएंगे. ठीक है. The last class is about a project that you are going to be working on, and आप लोग इसको जो है वो सबमिट कर रहे होंगे. This is for your own help and कि आपने कितना सीखा और कितना काम किया. Usually हमारे पास ये जो एक क्लास होती है इसको मैं एक्सेल वाली क्लास के साथ एडजस्ट कर देती हूँ. सो फिर आई आस्क यू गाइज टू वर्क ऑन इट, एंड आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो शेयर कर दो मेरे साथ ड्राइव के ऊपर. आई विल look into it and I'll give you the feedback, right? Because इसके अंदर हम एक प्रेजेंटेशन वाला सेटअप मॉड्यूल लेके नहीं चल रहे होते. So इस क्लास को मैं यूजुअली एक्सेल के साथ एडजस्ट कर देती हूँ. तो फिर वहाँ पे भी हमारी ऑलरेडी एक्सेल की 3 क्लास होती है, तो वो चौथी क्लास बन जाती है, तो काफी मटेरियल फिर एक्सेल के अंदर कवर हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज हाउ आई एक्चुअली मैनेज इट, बिकॉज 16 है तो लिमिटेड टाइम फ्रेम है, कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जो चीजें पढ़ानी होती है, तो फिर वो हम इसको इस तरीके से लेके चलेंगे. सही है. दिस इज द वेरी डिटेल्ड आउटलाइन, एंड आई विल आल्सो शेयर दिस द स्ट्रक्चर. सही है. इसमें हमारे पास प्लस माइनस, जहाँ पे आप नोटिस करो कुछ AI के टूल्स नहीं लिखे हुए. सो हम यहाँ पे ChatGPT, क्लॉड, Copilot, Gemini, ये सारी चीजें भी पढ़ रहे होंगे. आई विल आल्सो बी टीचिंग यू हाउ टू एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज दीज टूल्स. हम इसमें अपने एक्सटेंशंस कैसे बना सकते हैं. एजेंटिक AI तो ऑफ कोर्स हम लोग, हमारा कोर्स ही नहीं है, बट अगर आपने कोई चीज एक सेट करनी है रिकरिंग ऑटोमेशन के ऊपर, वो कैसे कर सकते हैं. सही है. और इसके अंदर क्या चीज कवर नहीं है, हाउ टू मेक योर ओन पोर्टफोलियो. चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही होंगी कि मैंने गिटहब लिखा हुआ है, बट गिटहब के ऊपर आप अपनी किस तरीके से एक पूरा पोर्टफोलियो बना सकते हो, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर जॉब इंटरव्यूज. ऑफ कोर्स इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ टेक्निकल रोल, तो वो आपका इस बूट कैंप के साथ साथ बन जाएगा. देन आई थिंक AI हो गया, गिटहब हो गया, हमारी थोड़ी सी ऑटोमेशन की चीजें हो जाएंगी जो मैं आपको सिखा रही होंगी. रिपोर्टिंग लेंस से, डैशबोर्ड लेंस से, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी, राइट? सो काफी हमारा अच्छा पूरा एक आउटलाइन इसकी डिफाइन हुई हुई है.
which is going to be beneficial for you if you take all these classes and you keep on learning with me. It's of course, one day at a time. तो हो सकता है एक दिन आपको कोई चीज नहीं समझ आए, बट अगर आपने क्लास अटेंड की हुई होगी और आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आना स्टार्ट होगा, तो फिर आप चीजें पिक करना स्टार्ट कर लोगे. ठीक है. So this is the entire overview of the outline. Any questions, anything that you find confusing, कुछ आपको लगता है कि नहीं ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, या आपका कोई अपना सजेशन है तो बताएं. Yes, please feel free to speak up. Assalamu alaikum. Rabia, one thing that I noticed here and while working with data in Excel, मुझे हमेशा ये confusion रही है कि why we use VLOOKUP and HLOOKUP while XLOOKUP can replace both of them. Yeah. एक ये question है कि why actually we use VLOOKUP or HLOOKUP while XLOOKUP can replace both of them. और second question regarding the SQL का जो part है, so is it only focused on the basics or we will also go into the intermediate part as well? So good. Thank you. Questions. Yeah. So good questions, Amar. First I'll answer the first one कि हम VLOOKUP, HLOOKUP क्यों अभी तक यूज कर रहे हैं जब XLOOKUP हमारे पास आ चुका है. So you are absolutely right. If you have a good grip on XLOOKUP, then you don't need to use VLOOKUP or HLOOKUP or even index match for that purpose. I think it's a matter of convenience. कि लोगों को एक हैबिट बन गई है या दे फाइंड इट मोर इजियर टू यूज, तो वो वहां पे VLOOKUP को यूज करते हैं या प्रेफरेंस बनाते हैं. बट वही चीज XLOOKUP से हो जाती है. So I was also previously using VLOOKUP for the longest of time, but since 2023 or 4 I've been using XLOOKUP now. So मैं migrate कर चुकी हूँ उसके ऊपर, but it's just a matter of convenience. अगर आपका उस पर हाथ बैठा हुआ है, आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आता है, तो आप उससे कर लें. आउटकम तो दोनों से देखें सेम ही निकल कर आएगा, राइट. सो टू सम इट अप, जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस, जो आपको समझ आ जाए. फॉर SQL, लेट मी ऑल्सो जम्प टू दैट पार्ट, राइट. सो SQL के अंदर वी आर गोइंग टू बी कवरिंग बेसिक्स एंड इंटरमीडिएट बोथ. यहाँ पे जो हमारा इंटरमीडिएट है, थोड़ा सा जॉइंट्स, सब क्यूरी, सीटीज हमारे पास इंटरमीडिएट के अंदर ही क्लासिफाई हो रहा होता है. हम इसका जब एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मैं इसको जो जॉइंट्स हैं उसको कैटेगराइज इंटरमीडिएट पे करती हूँ. जो बेसिक्स है वो हमारी फर्स्ट 2 क्लासेस पे होंगी, जिसके अंदर हमारे जो एक्सटेंडेड फंक्शंस हैं, सेलेक्ट फ्रॉम द ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, राइट, वो तो सेट हुए हुए हैं, तो हम उनके ऊपर वर्किंग करेंगे. अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर मोर फंक्शंस इन SQL एज वेल, इवन इन बेसिक्स, तो हम वो भी पढ़ रहे होंगे. सो हम इसमें इंटरमीडिएट पे जाएंगे. इंटरमीडिएट में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल वर्किंग होती है सब क्यूरीज एंड सीटीज की. आई बी ऑनेस्ट, हम इतना ज्यादा उस पर डिटेल वर्किंग नहीं करेंगे, बट टच एंड गो जरूर करेंगे कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. एंड उसके अंदर जितनी भी किस्म की सब क्यूरीज होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो फिर आगे की जो चीजें होंगी वो फिर आप अपने ओन पेस पे सीख सकते हो. बट मैं आपको कंटेंट, वो सारी चीजें, रोड मैप सब डिफाइन करके दूंगी. Sure. Thank you so much, Rabia. ठीक है. Any other question? जी हमजा. Hello. Now that we have Copilot, so does it make like dashboard making redundant, or do you think in future there will be no need of making dashboards or something like this? Okay. So Hamza, great question. And I'll also answer, we'll also learn about it when I show you the presentations as well, right? So in terms of, how AI is now working, या हमारे पास Copilot आ गया है या Claude आ गया है, तो क्या dashboards वो हमारे लिए create कर देंगे? So yes, to some extent, they can create the dashboards for you. But see, AI is not smart enough in terms of the insights you want to extract. So it doesn't know about your business end to end. कि आप उसमें आपका बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट करता है. जनरल अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली AI को है, बट उस डेप्थ में चीजें नहीं पता जितना आपको पता है, तो वो उस लेवल की इनसाइट्स आपको नहीं मिलेंगी. Copilot I would not recommend for dashboard creation. Maybe Claude, because Copilot अभी इतना उसका जो मॉडल है वो इतना एडवांस नहीं है. It's still, they are working on it. I don't know how much you understand how these models are also working on the back end, but these are large language models.
to just give you an idea कि आपको थोड़ा सा concept समझ आए. So जब भी कोई information, जैसे हम लोग हैं, हमारा brain है, हम लोग information को perceive कर रहे होते हैं, तो एक thought process होता है, right? So उसी तरीके से एक model का भी thought process होता है जिसको हम large language models पे कहते हैं, and हमारे कुछ parameters होते हैं जो उस हिसाब से चल रहे होते हैं. So Copilot अभी उतना उस तरीके से advance नहीं हुआ है, Claude ज्यादा है, Claude आपको एक अच्छा बेहतर व्यू बना के दे सकता है, बट वो भी आपको completely इस तरीके से नहीं होगा that you can rely on it, again because you will have to make changes on it. So I'll give you a very personal example that I usually make my presentations using either napkin.ai or ChatGPT for content, right? So उसमें मेरे साथ हो क्या रहा है that अब वो मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरी जिंदगी आसान हो गई है और AI ने मेरी presentation बना दी है, but my presentation has to be reviewed by 4 people. So my manager, then his manager, and then उनके भी ऊपर manager on top of it, right? So 3 people are reviewing my presentation, and if the CEO wants, then the CEO as well. So 4 people then, right? अब हर कोई अपना ना टेक्स्ट चेंज कराना चाहता है, तो मुझे मसला क्या आ रहा है, मेरी लिमिटेशन क्या है अभी एआई के साथ, कि वो मुझे बना के तो बड़ी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन देता है, बट आई कांट मेक एडिट्स और चेंजेस टू इट, क्योंकि वो मुझे पिक्चर फॉर्मेट पे देता है जो चैट जीपीटी है. जो napkin.ai है वो मुझे इन्फोग्राफिक्स पे देता है, उसके लिए भी मुझे पेड वर्जन चाहिए अगर मैं उसका टेक्स्ट चेंज करना चाहूँ. सो थोड़ी सी यहाँ पे अभी एआई की लिमिटेशंस हैं. डेप्थ में हम अपनी इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन पे भी कवर करते हैं that why or where AI is going to be moving towards. But I think I hope मैंने आपको थोड़ा सा एक general idea दे दिया हो. So you're saying you have no practical experience working on it. That's completely fine. We're going to take everything from scratch. मैं आप लोगों से proper chat GPT को भी जो है वो setup करवाऊंगी, तो ताकि वो आपके जो भी आप कर रहे हैं या उससे वो सारी चीजों को सीखे, and वो अपने मॉडल को भी उसी तरीके से फिर ट्रेन करे. So that's not a problem. ठीक है. अच्छा, we have another hand raised by someone. Yes, hi. I Hi, wanted to Abbas. ask you something. So I kind of joined a bit late, so I missed on the coding part and what you explained about it. So can you tell me exactly what is the coding that we're going to be learning and which software we're going to use for that? Okay, so hi Abbas. I first Hello. took introductions from everyone. You can also tell me a bit about yourself as well. And abhi tak we have just walked over the course outline that I have planned for this bootcamp. It's divided into 4 modules. So one is Excel, which is going to be the data analysis, visualization, hands-on bit of things. Then we're going to be jumping on Power BI, where we're going to be learning about data visualization in depth and how we can make good dashboards and reports on it, right? Third module is about SQL, where we are now going to be working with VS Code, and we are going to be learning about basics and intermediate of SQL. So जितने भी उसके concepts हैं वो हम सब cover करेंगे. Once we are done with SQL, the last and the 4th module is of predictive analytics, where we are now going to be merging our concepts, and हम यहाँ पे थोड़ा सा machine learning के बारे में जो है वो पढ़ेंगे. We are not going to be coding anything at all. It's a drag and drop software called Orange. तो हम उसके ऊपर अपनी working कर रहे होंगे. So this is the entire summary of what we have discussed so far. Okay, okay. Thank you so much. I'll give my introduction right now. Yeah, for sure. Okay. So my name is Abbas Khan. I'm studying in Institute of Business Management, IOBM. Okay. I'm currently doing supply chain management and logistics. I'm in my last semester, currently giving my finals actually. Okay. The other thing is I have some experience on Power BI and different softwares because they taught this in our university, but it's just the basics, All right. nothing in deep. Okay, got it. So before you joined as well, we were discussing the common themes that we have in our class. So we have people mostly from supply chain background. I think 3-4 of you are from supply chain. The rest of them are from either HR, sales, or finance. So I was just telling them that in our classes, whatever data set that we're going to be working with should be or will be pertaining to your industry in some way, so that you're able to relate to it and that your interest is also developed. So we're going to be taking our courses and classes in that way. Okay, okay. Right? Sounds nice.
All right, Sounds great. good. So, any other questions from other people? I think we have taken almost all of them. You guys can, lower your hands then. Okay, great. So, till we're done with the outline, I will have this shared with you. So, आप लोग भी इसको थोड़ा सा go through कर लेना. Now let's walk over the presentation. थोड़ी सी है ये detail में. There are a lot of pages. बट हम स्लाइड्स कुछ स्किप कर देंगे जो आप लोगों के लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वो कंटेंट जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो हम फिर रिपीट नहीं करेंगे. से सो लेट मी शेयर दिस. Right? Okay. So we are going to be now learning about the fundamentals of business analytics. सही है कि हम इस फील्ड में क्या पढ़ते हैं, क्या होता है, क्या चल रहा है. सो क्वेश्चन व्हाई बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे इस सब सारी चीजों में. लाइक व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाट्स द एंटायर प्रोसेस बिहाइंड इट. क्वेश्चनिंग थोड़ा सा अपने आप से भी किया करें. कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसे करते हैं अपने बारे में, तो थोड़ा सा डेटा के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में भी सोचा करें. दैट व्हाई, राइट? सो दिस इज वन क्वेश्चन दैट आई विल आल्सो कीप ऑन कमिंग बैक टू. Why we are doing this or why we are learning about it. Okay. So, of course, the most important thing in our entire boot camp is data, right? What is data? So, I think सबकी थोड़ी सी इस पे understanding तो होगी कि data है क्या हमारे लिए. But, it is anything that is information which is in the form of facts, figures or symbols, right? So, now these forms, figures, कैसी चीजें होती हैं, ये हम इससे करते क्या है, ये मैंने नीचे थोड़ा आपके लिए डिफाइन किया हुआ है. बट एनीथिंग दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसको हम प्रोसेस करें और हम उससे कुछ नॉलेज या इंसाइट्स निकाल सकें, इज डेटा फॉर अस. ठीक है. सो अब अगर आप ये इमेज देखो तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा दैट व्हाट इज डेटा. इट इज नंबर्स फॉर अस, it is facts for us, it is observations for us, it is measurement, it is graphs, some information and some quantities. Okay. One example that I give over here is which is, I think, I don't know relevant to you or not, but usually जब आप लोग अपने कॉलेज में होते हो तो वहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स, आई थिंक अगर आपने इकोनॉमिक्स या कॉमर्स ली हुई होगी तो शायद नहीं पढ़ी होगी, बट हम उसकी भी थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं. सो केमिस्ट्री में हमारा एक बड़ा स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट होता है अबाउट टाइट्रेशन, which is about you have to add some chemicals to it and have to turn that entire liquid to a very baby pink, tea pink color, right? Now the problem with that entire experiment is that if you have the wrong quantities or you add too much of it, then वो बहुत ज़्यादा pink हो जाता है. So मतलब वो रूह अफ़ज़ा वाला color बन जाता है, which is something that you don't want. So you have to be very careful with the amount of quantity you are adding for a particular chemical. ठीक है. So and इसी तरीके से इसका vice versa भी होता है, where you now have to make that entire chemical transparent. तो फिर आप उसमें अपनी relevant quantities numbers के साथ play around कर रहे होते हो. So all of that bit, right? Even though we have been working with it since a child, because I took computer science and then I have done pre-engineering. तो मेरे पास chemistry was a subject that and physics of course as well. दोनों मैंने जो है वो बैचलर्स तक आने से पहले तक पढ़े. ठीक है. तो मेरे काफी कॉन्सेप्ट्स उसकी वजह से भी जो है ना वो क्लियर है. बट बचपन में मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि मैं ये जो एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ, दिस इज एक्चुअली डेटा, और मैं इसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रही हूँ. ठीक है. उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग अपने जो है वो इनसाइट्स निकालते हैं. ठीक है. For people who are not have not learned about chemistry or physics, even if we talk about economics, right? So अगर हम लोग businesses की बात करें, so हर business के लिए आपकी एक P&L statement बन रही है, right? And हमें जब हम पढ़ रहे होते हैं when we were kids, right? हम इतना इंटरप्रेट ही नहीं करते कि ये इतना डेटा आ कहाँ से रहा है, या इसके ऊपर डिसीजन कैसे ले रहे हैं, या अगर कोई कंपनी का CEO है तो वो ऑपरेट कैसे कर रहा है, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव बीन टेकिंग डेटा ड्रिवन डिसीजंस, राइट? तो वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये वो चीजें हैं जो हमें शायद नहीं समझ आती थी बचपन में, बट क्योंकि अब हम लोग आगे आगे चीजों को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं इस बारे में, तो वी आर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस पार्ट, राइट? सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज डेटा. Now things have changed drastically for all of us, right? Now data is everywhere with whatever we are doing. It's in social media, the amount of times you open an application, the amount of times you are
spending or watching a particular reel, कितनी अगर आप कुछ गेम खेल रहे हैं, तो ये सारी जो भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन है ये मेरे लिए डेटा है, और अब मैं इस डेटा को इंटरप्रेट या एनालाइज करके आपके बारे में इंसाइट्स निकाल सकती हूँ. So now it is just everywhere because now we are also very well educated, so we understand how things have been going on in the background. So yeah, so that is why I wanted to spend some time and discuss that over the time period that since we were kids to now we are adults, how do we see and perceive data, right? So हमेशा से हमारे background में था, but अब हमने इस पे focus करना start किया. Then of course there are types of data as well. Now this is very important to understand. So हमारी तीन मोटी types होती हैं data की. One is structured data, the other is unstructured data, and the last one is semi-structured data. जो structured data होता है, this is in the form of tables. सही है? So rows, columns जिसमें भी आपको नजर आ रही है वो आपके लिए structured data है. हम लोग जो इस डेटा पे काम करेंगे वो भी हमारे लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा है. तो अगर आपने किसी डेटा के ऊपर एनालिसिस करना है, वो आपको अगर अनस्ट्रक्चर्ड है तो उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तभी आप उसके ऊपर अपना एनालिसिस रन कर सकते हो. अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू. ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है स्ट्रक्चर्ड डेटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल, रोज एंड कॉलम्स, एंड देन डेटाबेसेस जो कंपनी हमारे लिए बना रही है. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हमारे लिए क्या होता है, इवन इफ यू लुक एट दीज आइकन्स, सो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर, सर्कल्स इस तरीके से बने हुए आ रहे हैं, राइट? सो दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. इट मींस दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट एनालाइज. सो अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, ईमेल्स, वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट. सही है, अगर आप अपनी गैलरी खोलो उसमें इतनी सारी पिक्चर्स हैं. इफ आई आस्क यू नाउ, कैन यू टेल मी दैट हाउ मेनी पिक्चर्स आर सेल्फीज एंड हाउ मेनी पिक्चर्स आर टेकन फ्रॉम द बैक कैमरा, you won't be able to differentiate, right? वो तो आपको मैन्युअली बैठ के फिर देखना पड़ेगा कि ठीक है ये फ्रंट कैमरा से ली हुई है, ये बैक कैमरा से ली हुई है, बट कोई और उसका कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से आप इस चीज को कैटेगराइज कर सकते हो. सो फॉर दैट एंटायर इमेजेस एंड एवरीथिंग आर बीइंग कैटेगराइज्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. ठीक है, ईमेल्स के अंदर भी यू हैव सच लोड्स ऑफ ईमेल्स. वहां पे भी इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और टेक सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट कि आप क्या ही एनालाइज करोगे. सो हर ईमेल में आपके पास बॉडी है, स्ट्रक्चर है, राइट, सब्जेक्ट है, बट हर सब्जेक्ट और आपका बॉडी डिफरेंट है. हर सब्जेक्ट या बॉडी के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन लिखी है वो आपको एक अलग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ही बता रही है. किसी भी तरीके से हो सकता है अगर एक थ्रेड चल रही है तो वो कुछ मीनिंगफुल आपको वहां से बात पता चल रही हो, बट अपार्ट फ्रॉम इट यू वोंट बी एबल टू गेट एनीथिंग, राइट? सो वो भी आपके लिए एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का फॉर्मेट बन जाता है. सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? नाउ दिस इज अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. सो यहाँ पे जो आपके पास दो एग्जांपल्स हैं, दिस इज जेसॉन एंड एक्सएमएल. दिस इज टेक्निकल बिट ऑफ इट. जेसॉन इज हमारी जो जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज होती है, तो उसमें दिस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसमें हमारा जो फॉर्मेट होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड का वो जेसॉन में होता है. एंड XML इज आवर एक्स मार्कअप लैंग्वेज. ये हमारी वेब डेवलपमेंट में अगर आपका थोड़ा सा आइडिया हो तो उसमें CSS और हम लोग XML पढ़ते हैं. अगर आप अपना कभी किसी क्रोम ब्राउजर पे भी राइट क्लिक करके पेज इंस्पेक्ट करो तो वो कोड लिखा हुआ आ जाएगा कि वो वेबसाइट कैसे बनी हुई है. तो वहां पे भी हमारे पास XML यूज हो रही होती है. ठीक है, सो ये वो चीजें हैं जो शायद आपको पता हो कि डेटा किस तरीके से दिखता है, क्या होता है, बट शायद टेक्निकली आपको चीजें इतना पता नहीं हो कि कितने किस्म के डेटा होते हैं या क्या क्या स्ट्रक्चर होता है या क्या हम उसमें चीजें पढ़ रहे होते हैं. ठीक है, सो इट इज माय जॉब टू टेल यू द कॉन्सेप्ट एज वेल, ताकि अगर आप कभी किसी जॉब इंटरव्यू में जाएं वो आपसे डेटा एनालिसिस से पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछना चाहे, सो यू हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया टाइप्स ऑफ डेटा. Then this is how actually how data looks like, right? So इसमें हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई आ रही हैं. ठीक है, let me also pause it over here. So ये टेबल है, ठीक है, कॉलम्स हैं, उसमें रोज हैं, वैल्यूज लिखी हुई आ रही हैं. इस टेबल से हमारे ये विजुअल्स ड्राइव हो रहे हैं. So we have a pie chart over here, we have a bar chart over here, and then we have some open items, scorecards हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो ये हमारे पास वैल्यूज पता चल रही है. ठीक है, so this is how actually डेटा लुक्स लाइक. एंड हम इसको इसी तरीके से हम भी अपनी वर्किंग करेंगे कि हमारे पास टैबुलर फॉर्मेट पे डेटा होगा एंड हम उसको कन्वर्ट करेंगे और हम उससे मीनिंगफुल इनसाइट्स वगैरह निकाल रहे होंगे. ठीक है, तो दिस इज हाउ डेटा लुक्स लाइक फॉर ऑल ऑफ अस. एनी क्वेश्चंस टिल हियर? सही है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं. और जस्ट गिव मी अ थम्स अप एंड वी कैन प्रोसीड.
ठीक है, ग्रेट, ओके. So now we'll talk about the world of analytics, right? So this is quite huge for all of us. Let's take some time and understand कि इतनी सारी चीजें हमारे पास इसके अंदर हैं, and even you guys have specifically selected, you know, business intelligence from these circles. So ये है क्या और हम यहाँ तक पहुंचते किस तरीके से, इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है. So देखिए, जब तक हमारे पास लोग इतना उन्होंने रिसर्च नहीं करना स्टार्ट की थी, तो हमारे पास जो फील्ड बैकग्राउंड में एग्जिस्ट करती थी, दैट वाज ऑलवेज कंप्यूटर साइंस, ठीक है. एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी सिर्फ कंप्यूटर साइंस तक ही पता था क्योंकि मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया. बट व्हेन आई वाज इन माय लास्ट सेमेस्टर, एंड दिस इज आई थिंक आई वाज स्टेपिंग इनटू, या आई वाज ग्रेजुएटिंग इन कोविड, तो उसमें आई रियलाइज्ड that there are a lot of things in computer science as well, but किसी ने उसको कैटेगराइज नहीं किया हुआ. एक बहुत ही बड़ी अम्ब्रेला है जिसके अंदर ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, ठीक है. सो इवन एनालिटिक्स भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक कंप्यूटर साइंस का ही फील्ड है. एंड उसके अंदर जो हम लोग चीजें पढ़ रहे होते हैं, दैट इज, यू नो, मैथ, सम स्टैटिस्टिक्स, सम मशीन लर्निंग. और हम इससे करते क्या है, हम इससे मीनिंगफुल इंसाइट्स या पैटर्न्स निकालते हैं अपने डेटा के अंदर, ठीक है. सो थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेते हैं और मैं थोड़ा सा आपको इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए, जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड है ना, इसके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों आ जाता है. हार्डवेयर को तो मैं यहाँ से कंप्लीटली माइनस कर देती हूँ क्योंकि ना मेरा और ना आप लोगों का हार्डवेयर के अंदर इंटरेस्ट है, ठीक है. सॉफ्टवेयर के अगर हम लोग अंदर आते हैं तो कंप्यूटर साइंस के अंदर भी सॉफ्टवेयर में बहुत सारी वेरियस चीजें हैं. सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाती है, ठीक है. जैसे आई थिंक वन ऑफ यू इज अ प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट इंजीनियर, सो ही विल अंडरस्टैंड दैट पार्ट, राइट, कि हम इसके अंदर ये कैसे मोबाइल डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं. दिस इज वन बिट ऑफ इट, राइट. इसको हम लोग मोटा मोटा प्रोग्रामिंग के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं. जो ये आपके प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, ऑफ कोर्स ये भी, इसमें बहुत सारे रोल्स हमारे इंडस्ट्री के आ जाते हैं जो उन्होंने क्रिएट कर दिए. जैसे जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो कोडिंग नहीं करेगा, वो ये जरूर बताएगा कि एप्लीकेशन दिखती किस तरीके से या इसके अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए. लेकिन जो आपका डेवलपर होगा वो आपके प्रोडक्ट मैनेजर की जो चीजें उसने बताई हुई होंगी उसको डेवलप कर रहा होगा, ठीक है. तो मल्टीपल रोल्स हमारे पास यहाँ से एग्जिस्ट कर रहे हैं. इसकी ब्रॉड कैटेगरी हमने डिफाइन कर दी है, विच इज प्रोग्रामिंग. फिर उसके बाद हमारे पास जो ये सारी जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, अगर हम इसी की बात कर लें, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए, कि अब डेवलपर ने एप्लीकेशन बना दी, अब वो यूज होना स्टार्ट हो गई, तो अब हमारे पास यहाँ पे डेटा कलेक्ट स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. अब ये जो डेटा कलेक्ट हो रहा है इसको किसी ना किसी को तो एनालाइज करना होगा, राइट. तो यहाँ से फिर हमारी एनालिटिक्स की दुनिया स्टार्ट होती है. लेकिन अब ये डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, ठीक है. फिर अब ये जो पूरा आपने एंड टू एंड एप्लीकेशन डेवलप कराई, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल आ जाता है. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है. Then in project management there are various roles. There is a scrum master, there is just a project manager, then there are people, you know, who are doing the documentation bit of it as well. तो बहुत सारे डाइवर्स रोल्स हैं इसके अंदर, ठीक है. बट अगर हम अपनी एग्जाम्पल को ही पूरा लेके चले तो उसमें फॉर एनीवन हु डेवलप्ड एन एप्लीकेशन एंड नाउ दैट एप्लीकेशन, उसका जो डेटाबेस सेट हो चुका था, उसमें हमारा डेटा स्टोर हो रहा था, तो वहां से अब हम अपनी एनालिटिक्स की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. Now data analytics is basically where you are working with massive data sets, right, where you are covering or uncovering data and are trying to understand इसमें से क्या क्या पैटर्न्स हैं, आप इसमें से क्या इंसाइट निकाल सकते हो और क्या नॉलेज आप यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है. So that is data analytics. Now when you look at these circles, सही है. So let me see अगर हम इस पे ड्रॉ भी कर लें, ठीक है. So जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, let's take a small marker. So I think I will have to select white color क्योंकि लिख नहीं पाएंगे, ठीक है. So अभी जैसे हमने डिस्कस किया, this we have computer science and then हमने यहाँ से निकाला कि हमारे पास एक है प्रोग्रामिंग, ठीक है. Let me see अगर ये थोड़ा सा पतला हो जाए, राइट. तो या थोड़ा बेहतर हो गया. सो वी हैव प्रोग्रामिंग, देन हमने यहाँ से डिस्कस किया हमारे पास है प्रोजेक्ट, ठीक है. फिर हमने डिस्कस किया कि इस प्रोग्रामिंग से हमारे रोल्स आ रहे हैं जो है डेटाबेस के, ठीक है.
एंड देन फिर इस डेटाबेस से हमारी दुनिया आती है एनालिटिक्स की. Oh no, sorry. So this is the world of analytics from here, right? Now this is what I just explained it to you. But यहाँ पे आप देखो हमारे पास AI भी आ रहा है, right? तो CS का एक बहुत बड़ा चंक था जो काफी अनडिस्कवर्ड था, that was artificial intelligence. सॉरी ये वाइट है तो आपको ये लाइन एरो नजर नहीं आ रही, बट मैं ये CS से मैंने यहाँ पे AI को कनेक्ट किया, राइट? सो अभी हमारे पास CS के अंदर ही एक बड़ा सा सर्कल है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मजीद ये नीचे सर्कल्स कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? सो हमें शुरू से बिल्कुल पता था कि हमारे पास AI है, क्योंकि हम लोग इसको बहुत ही आई वुड से दैट वी वर नॉट दैट एडवांस. सो जब हमने CS को आगे AI के साथ, थोड़ा जूम इन कर रही हूँ, हमने कनेक्ट किया, तो पता नहीं क्यों हम लोगों ने ऐसे सोचा दैट दिस इज ऑल रोबोटिक्स. आप देखो बीच में एक बड़ा जो है ना वो फेज आया था जहाँ पे हम सिर्फ रोबोटिक्स के बारे में ही पढ़ते रहते थे या अंडरस्टैंड करते थे. सो मोस्टली हमारे लिए AI जो है ना वो रोबोटिक्स थी. फिर हमने समझ आया कि नहीं भाई, AI इज नॉट ऑल अबाउट रोबोटिक्स, देयर इज ऑल्सो क्वांटम कंप्यूटिंग इन इट. ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारे लिए क्वांटम कंप्यूटिंग है. फिर लोगों को समझ आया कि नहीं, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग आपस में बिल्कुल कनेक्टेड है, लेकिन और भी बहुत चीजें हैं जो हम इसमें पढ़ सकते हैं. तो फिर वहां से जाके हमारे पास AI के अंदर मजीद सेग्रीगेशन है. बट ये जो रोबोटिक्स या क्वांटम कंप्यूटिंग है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये हमारे पास 2019 तक तो मैं बोलूंगी कि हम इसी एरा में ही थे, क्योंकि आप देखो एकदम से कोविड आया और फिर लोगों ने बोला कि ओ वाओ, डेटा साइंस भी कुछ एक दुनिया होती है, वरना इससे पहले किसी को डेटा साइंस के बारे में इतना पता नहीं था. ठीक है, सो अब ये जो हमारे पास AI आ गया है, यहाँ से हमारा कनेक्ट होता है मशीन लर्निंग. गिव मी अ सेकंड. ऑलराइट, सो हमारे पास यहाँ पे जो AI है, यहाँ से कनेक्ट होता है हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, राइट? सो एक्चुअली मशीन लर्निंग भी डेटा साइंस के अंदर ही आता है. डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब है क्या? सो ये जो हमारे मॉडल्स बने हुए हैं, सही है, जो आपको शायद अभी नहीं पता, बट इन मॉडल्स की एक्यूरेसी क्या है, ये एल्गोरिथम्स क्या है, ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये सब डेटा साइंस है, सही है. आई एक्चुअली स्टार्टेड माई जर्नी डेटा साइंस as well. I found it to be a little boring because I have great communication. Not saying that I'm obsessed or anything, but I have great communication. So I realized मुझे बातें करने का बहुत शौक है. And data science की जो जॉब थी उसमें रिसर्च बहुत ज्यादा थी, कि मैं रिसर्च पेपर पढ़ूं, फिर उस रिसर्च के ऊपर कोई एनालिसिस करूं, ठीक है? तो वो मुझे वहां पे वो चीज नहीं समझ आई. एंड आई रियलाइज दैट आई कैन नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर ऑल डे and play with different parameters and make changes in an algorithm, right? That's just not my cup of tea. I want to sit and see and analyze data and make an impact. So I wanted to work with, a business कि मैं वहां पे impactful डेटा के ऊपर कुछ इंसाइट्स निकाल सकूं, ठीक है? तो वहां से मुझे समझ आ गया कि डेटा साइंस इज नॉट फॉर मी. बट एक्चुअली ये इसके अंदर AI से ही कनेक्टेड है डेटा साइंस. डेटा साइंस से फिर हमारे पास कनेक्टेड है मशीन लर्निंग, ठीक है? एंड डेटा साइंस ही हमारे पास कनेक्टेड है बिग डेटा, और डेटा साइंस ही हमारे पास कनेक्टेड है डेटा एनालिटिक्स. सो जो बिग डेटा है, दिस इज मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रोज, कि वो कैसे सिस्टम के अंदर स्टोर हो रही होंगी, तो वो हमारे लिए बिग डेटा बन जाती है. बिग डेटा की अपनी ही टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप हडूप, स्पार्क, आपने कुछ ये नाम सुने हुए होंगे, ठीक है? और मशीन लर्निंग हमारे पास एक बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट है, जिसके अंदर आप एल्गोरिथम के ऊपर वर्किंग कर रहे हो. बट अगर ना आपको इस टेक्निकल लेंस में इंटरेस्ट है, ना आपको इस टेक्निकल लेंस में इंटरेस्ट है, आपको बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है, तो आप डेटा एनालिटिक्स के साइकिल पे आ जाते हो. ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे इसके अंदर भी मजीद बहुत सारे रोल्स हैं या जर्नी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो. बट डेटा एनालिटिक्स के अंदर आप और मैं, हम सब एग्जिस्ट करते हैं. सो मैं भी अपने आप को एक बिजनेस एनालिस्ट रेफर नहीं करती. बिजनेस एनालिस्ट इज अ जूनियर रोल. आई एम नाउ समवन हु इज अ डेटा एनालिस्ट, राइट? सो आप ओवर द टाइम पीरियड आपका रोल भी ट्रांजिशन कर जाता है उस चीज के अंदर. सो मोटी मोटी ये हमारी एक वर्ल्ड ऑफ एनालिटिक्स की एक जर्नी रही है, ठीक है, जो मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. इसके अंदर मजीद बहुत सारी चीजें हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? आई डोंट वांट टू ओवरलोड यू विद टू मच इंफॉर्मेशन, बट we will touch base on it later on, right? So for example, computer vision क्या है, NLP क्या है, deep learning क्या है, ये सब मैं आपको जरूर बताऊंगी जब हम अपने लास्ट मॉड्यूल पे आएंगे, which is a predictive modeling. तो मैं फिर ये आपको पूरी AI का एक स्ट्रक्चर बना के, वेब बना के एक्सप्लेन करूँ. बट फॉर नाउ
टिल हियर इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ, ठीक है। सो यहाँ पे हमने वर्ल्ड ऑफ एनालिटिक्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब ये हमारी वो एक पाथवे है जो आपने जिसके ऊपर काम करना है। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो आप हमेशा इस्तेमाल कर रहे होंगे। सबसे पहले आप कहीं ना कहीं से डेटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है, नाउ लेट्स चेंज द कलर फॉर इट। सो दिस कुड आइदर बी कमिंग फ्रॉम वेबसाइट, राइट, or this could come from any app, or this could come from forms, or this could come from etc any place else, सही है। सो आपने डेटा कहीं ना कहीं से कलेक्ट किया। जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो आपको डेटा के अंदर बहुत सारी नॉइज नजर आ रही होगी, ठीक है। तो अब आपको डेटा की जो नॉइज है उसको क्लीन करना है। सो अब आप उसे क्लीन करने के लिए बैठोगे तो आप उसमें से एरर्स हटाओगे, मिसिंग वैल्यूज हटाओगे, अगर बहुत सारी उसमें इररिलेवेंट चीजें आ रही हैं तो आप वो हटाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेटा क्लीनिंग का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, सही है। जब आपने अपने डेटा को क्लीन कर लिया तब आप उसे एनालाइज करने के लिए बैठोगे। जब आप एनालाइज करोगे तो आप उसमें कोई स्टैट्स का मॉडल लगाओगे, कोई मशीन लर्निंग की टेक्निक लगाओगे, बट आप अपने डेटा को एनालाइज करोगे, ठीक है। जब आपने अपने डेटा को एनालाइज कर लिया, अब आप यहाँ पे आपने स्टार्ट किया था रॉ डेटा से। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये आपने रॉ डेटा से स्टार्ट किया, आपने फिर उसके बाद इस डेटा को ट्रांजिशन किया जिसके अंदर आपके पास रोज एंड कॉलम्स के अंदर प्रॉपर कॉलम्स आ गए कि आपने क्या क्या इसमें वर्किंग की है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड स्टेप। फिर आप निकले अपने थर्ड स्टेप के अंदर जहाँ पे आपने पिवट टेबल्स फॉर एग्जाम्पल बना दिए। तो आपने 2-3 पिवट टेबल्स बना दिए जिससे आपको समझ आ गया कि डेटा इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है। ये मैंने आपका डेटा बना दिया, ठीक है। अब आपने बोला ठीक है मुझे ये नजर तो आ रहा है बट मैंने अब इसको एनालाइज भी करना है। अब मैंने एनालाइज कर लिया तो मुझे विजुअलाइज करना है। तो आपने बोला मुझे ये टेबल नहीं समझ आ रहे, मुझे चार्ट्स चाहिए। तो आपने फिर यहाँ पर आके कुछ चार्ट्स के अंदर डेटा को देख लिया, ठीक है। जब आप यहाँ तक पहुंचे तो आपने बोला कि ठीक है यार मुझे समझ तो आ गया कि मेरा डेटा किस तरीके से नजर आ रहा है, बट मैं इसके ऊपर अब क्या डिसीजन लूँ। तो आपका वो 5th स्टेप आ गया। तो ये देखिए एक पाइपलाइन है, एक प्रोसेस है जो आप एक अपने स्ट्रक्चर भी करोगे अपने थॉट्स को और उसी हिसाब से लेके चलोगे। सो रॉ डेटा कन्वर्टेड इनटू structured data, right? Where you have cleaned the data, noise has been removed, then you have made it into pivot tables. From those pivot tables, you have made graphs where you now want to analyze the data, and based on it, now you want to make a decision. तो आप वहां पे उस इन विजुअलाइजेशन से डिसीजन ले रहे होगे। सो ये हमारे 5 स्टेप्स हैं जो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लासेस पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर 1 के ऊपर फोकस करेंगे और 2 के ऊपर फोकस करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी सैटरडे फॉर अस, टेलिंग यू ऑलरेडी। Then analyze is going to be Sunday, right? Maybe we can do visualization on Sunday as well. Otherwise, this would be Saturday. So this is how the next weekend would look for you. ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। What is the difference between data analytics and business analytics, right? मतलब हमें तो लगता है सेम चीज है बट बहुत मुख्तलिफ चीज है। So data analytics is where you are learning about data from patterns, trends, risk, opportunities, and now you want to make a decision based on any hypothesis, any assumptions कि ये किस तरीके से होगा। So that's data analytics. Business analytics बहुत मुख्तलिफ चीज होती है, ठीक है। Business analytics is a junior role as well, where you are now trying to understand कि आप एक बिजनेस की मदद कैसे कर सकते हो, कि अगर आप बिजनेस को एक इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो क्या उससे चेंज लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो दोनों का हमारा अगर आप गोल के हिसाब से बात करो तो ये एक सिवियर और मेरी एक मेजर डिफरेंस नजर आ रहा है डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर। बट जो डेटा एनालिटिक्स है आप उसके अंदर प्रेडिक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहे होते हो, ठीक है। बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर आप प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स गोल डिफाइन कर रहे होते हो, ठीक है। स्किल्स भी आप देखो दोनों की बहुत डिफरेंट रिक्वायर्ड है। अब अगर मैं आपको एक बहुत थोड़े से यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन को पॉज करके बात बताऊं ना, so this data analytics is something that we all are going to be doing, but business analytics ना unfortunately पाकिस्तान में अभी किसी को ना इतना समझ नहीं आया। सॉरी ये थोड़ा सा मुझसे मेसी हो गया, राइट। सो अभी ना एक्चुअली बिजनेस एनालिटिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है किसी को समझ नहीं आई है। सो दिस इज एक्चुअली there is a technical business analyst as well, so I'll just write technical, right? Then we have a BI analyst जो अभी आप लोग बनोगे इंशाल्लाह, ठीक है। So one is technical business analyst, then we have a BI analyst, then we just have a business analyst,
से अनफॉर्चुनेटली ये जो सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट है, ये हम गलत टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज करते हैं. दिस इज समवन हु इज FA लिख रही हूँ, अ फाइनेंशियल एनालिस्ट. ठीक है. सो पाकिस्तान में हमारा ये रोल काफी अनक्लियर है, इसलिए हर किसी को बिजनेस एनालिस्ट बोलता रहता है. टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी precise manner, a technical business analyst is someone who is making the documents on how the application is supposed to look like. So जो product manager है, उसके पास कहीं ना कहीं से तो बिजनेस से रिक्वायरमेंट आएंगी ना कि मेरी एप्लीकेशन दिखनी किस तरीके से चाहिए. तो एक बिजनेस एनालिस्ट वहां पर होता है जिसका काम होता है कि वो बिजनेस के साथ बैठे और वहां पे उनसे रिक्वायरमेंट्स लें और उनकी सारी भी जितनी खुशियां हैं, दुखी दस्तान है, वो सारी चीजें सुने, गम लेकर आए और उसको डॉक्यूमेंट करे. वो जो टेक्निकल बिजनेस एनालिस्ट होता है वो डॉक्यूमेंट्स बनाता है, सच एज BRD, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. वो बना रहा होता है आपका FSD, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, और वो ये डॉक्यूमेंट्स ला के देता है आपके प्रोडक्ट मैनेजर को और बोलता है कि हेलो, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आई वर्कड ऑन विद द क्लाइंट, नाउ यू कैन लुक आफ्टर देम एंड देन टेल मी दैट कि किस तरीके से इन चीजों को आगे लेके प्रोसीड करना है. नाउ दिस प्रोडक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर एज वेल, दोनों के अलग अलग मुख्तलिफ काम है. प्रोडक्ट मैनेजर इसके ऊपर PRD बनाता है, PRS बना रहा होता है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. ठीक है, वो पूरा उसकी वर्किंग कर रहा होता है. जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो देखता है कि ठीक है, इसमें इतना सारा काम रिक्वायर्ड है FSD के हिसाब से, तो कितना टाइम लगेगा, क्या गैंट चार्ट बनेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी. हर कोई अपना अलग अलग काम करना स्टार्ट कर देता है. बट वो जो जर्नी होती है वो स्टार्ट होती है एक क्लाइंट से. क्लाइंट देता है बिजनेस एनालिस्ट को, जो टेक्निकल बिजनेस एनालिस्ट है. टेक्निकल बिजनेस एनालिस्ट डॉक्यूमेंट करके प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर को एंगेज कर देते हैं और फिर वो पीछे हट जाता है. फिर उसका काम होता है सिर्फ फॉलो अप. मुझे बताओ कि अब इसमें आगे क्या करना है, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, व्हाट आर द टाइमलाइन. फिर वो स्टीयर कर रहा होता है इस पूरे प्रोजेक्ट को. ठीक है. सो वो बन जाता है आपका टेक्निकल बिजनेस एनालिस्ट. जो BI एनालिस्ट है उसका काम होता है कि वो इस जो डेटा उसको नजर आ रहा है इस एप्लीकेशन से, उसमें से पैटर्न्स निकाले. सही है. सो थोड़ा बहुत उसका काम BI एनालिस्ट का डेटा एनालिस्ट के जैसे ही होता है. फर्क बस इतना है कि BI एनालिस्ट थोड़ा सा डैशबोर्डिंग और रिपोर्टिंग के ऊपर ज्यादा फोकस्ड होता है, और जो डेटा एनालिस्ट होता है वो वहां पर डेटा इंजीनियरिंग भी थोड़ी सी देख रहा होता है, डेटा साइंस में मतलब पाइथन भी थोड़ी सी देख रहा होता है, मशीन लर्निंग भी उसको आती है. तो डेटा एनालिस्ट थोड़ा सा सीनियर रिसोर्स होता है. जो तीसरा हमारा यहाँ पे आइटम है बिजनेस एनालिस्ट या फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये हमारे लिए बहुत मुख्तलिफ है. सो जो बिजनेस एनालिस्ट या फाइनेंशियल एनालिस्ट है, ये इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, ये वो वाली चीजें. ये आपको मिडिल ईस्ट में जो है ना ये रोल्स बहुत नजर आएंगे बिजनेस एनालिस्ट के ऊपर टैग हुए हुए. तो ये वो हमारा तीसरा रोल यहाँ से निकल कर आ जाता है. बट ये थोड़ा सा अभी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे चीजें सही तरीके से क्लियरली डिफाइन नहीं हुई है, तो थोड़ा सा वेग है टर्मिनोलॉजी, जॉब टाइटल्स एंड एवरीथिंग. बट आपको वो वर्क एक्सपीरियंस, जो आपको जॉब एक्सपीरियंस वगैरह होता है, वो देख के समझ आ जाता है जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना कि ये कौन से लेडर पे आपको फॉल करवा रहे हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है विच यू गाइस शुड अंडरस्टैंड. There was a difference between a data analyst and a business analyst. Any questions on this entire concept or slide? Say no questions. Okay. So moving on, this was a question that I think Hamza also asked, that how is AI going to be changing business analytics in the next 5 years? So firstly, I think you'll see Canva over here because I just changed my subscription. I think वो शायद मैंने paid subscription ली थी, अब वो मैंने खत्म कर दिया because I wasn't using it enough. So शायद उसकी वजह से यहाँ पे ये बन के आ रहे. But yeah, funny. Anyway, so now how is AI going to be changing business analytics, right? So it's going to make our lives easier. In terms of requirements, documentation, everything, this is something that you can rely on AI for. Any mock-up design screens you want to have for your application, again, you can rely on AI for. But AI cannot completely automate or replace you. Okay? Why? Because human thinking, critical thinking, problem-solving mindset is still very much required. AI तो आपको बोल देगा ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, right? But who is the one who is making decisions? Who is the one who is going to be calling shots? कि नहीं ये नहीं करना, ये irrelevant है, ये अभी business की requirement नहीं है. Someone who is a human being, right? So AI cannot completely replace you. It is going to make your life better.
but it completely depends upon you on how you are using it for your own use and advantage as well, right? मतलब अगर आप उसको स्मार्टली यूज नहीं कर रहे तो डेफिनेटली फिर आपको वहाँ पे आपकी मदद नहीं हो रही होगी। बट अगर आप अपनी जिंदगी थोड़ी आसान बनाना चाह रहे हैं और पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आई के अंदर, तो यू नो व्हाई नॉट, सौ बिस्मिल्लाह, बिल्कुल करें। I am also using and paying a lot of different services to AI. I already had Canva, मैंने अभी खत्म इसलिए किया, मैं इसमें mockups बनाती थी, but now ever since I've been promoted, I don't do all of this work, right? So I was paying 4,000 extra for this every month. So that is why I took off the subscription. I went like, name, I don't need this anymore, right? I had napkin.ai as well. I used to pay roughly 3,000, 4,000 for it as well. उससे मेरी presentation की infographics बन जाती हैं। अभी भी मैं बनाती हूँ, बट अब मैं इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से प्रेजेंटेशंस नहीं बनाती, तो मैंने वो napkin.ai भी हटा दिया। Then I still have ChatGPT. So I'm a premium user of ChatGPT. I think it makes my life a lot easier. But now, ever since I've used Claude, I think I will now migrate to Claude because Claude is more better as compared to GPT. I do not have the subscription for Copilot. I do not have the subscription for DeepSeek, Gemini, anything at all. I don't like it too much. ChatGPT के साथ मेरी काफी अच्छी एक relationship बनी हुई है, and it has a lot of data on which like me and ChatGPT make analysis or do analysis on. So it knows pretty much about my job, my applications, the work I do, my personal goals in life, everything. So I can't directly move from ChatGPT to Claude, but they have been working on something कि आप data अपना migrate कर सकते हो. So something that I have to look into. But अभी तक मैंने Claude को subscribe नहीं किया। Apart from that, there are a lot of AI tools that are I use. हम लोग जब पढ़ेंगे उनके बारे में तो मैं आपको बताऊंगी भी, पर वो मैंने फ्री उसके ऊपर लिए हुए क्योंकि इतनी यूजेज नहीं है। तो जहाँ पे मेरी सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई होंगी वो मैं आपको बता दूंगी, आप अपने एंड पे फिर उन चीजों को देख लेना। बट जहाँ जहाँ मेरे पास जो चीजें हैं, आई विल गिव यू अ डिटेल्ड वॉक थ्रू ऑफ ऑल ऑफ देम, ठीक है? बट इन शॉर्ट, AI इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस अस, नॉट इवन फॉर 5 years or 10 years. एक ह्यूमन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू मेक दोज डिसीजंस। सो कंप्लीटली आप इतने हेविली रिलाई नहीं कर सकते, अदरवाइज फिर आपका बिजनेस अगर लॉस में चला गया तो फिर हु इज गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट, राइट? नॉट मी, देन इट्स गोइंग टू बी AI. सो इस तरीके से कभी भी आपकी जॉब रिप्लेस नहीं हो सकती। आसान जरूर हो सकती है, वो भी आपके ऊपर है कि आप कितना आसान करना चाहें और बनाना चाहें अपने लिए जिंदगी को। नहीं बनाना चाहेंगे तो मुश्किल रहेगी, आसान बनाना चाहेंगे तो जल्दी चीजें हो जाएंगी, ठीक है? So to answer this question, यहाँ पे हमारे पास this is where we currently stand. Now ये थोड़ी सी हमारे पास काफी theoretical चीज है कि हम predictive analytics को बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत एक आइडिया तो आप लोग को अभी तक दिया है, कुछ एग्जाम्पल्स है। अभी I don't want to get too much into it because मैंने वैसे ही बहुत थ्योरी समझा दी है, तो I don't know if you guys have lost track of it or not, but इस पे we will revert back to it when we are learning about predictive analytics. So this slide and the next one कि हम Netflix के डेटा को किस तरीके से यूज करते हैं, this is a great case study. हम इसमें काफी डिटेल पर डिस्कशन करेंगे। I'll also share this with you beforehand ताकि हम जब क्लास में आए एंड हम थोड़ा सा आपस में भी एक दूसरे के साथ अपना थॉट प्रोसेस शेयर करें। तो ये काफी मजे की चीज है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी हम ये देख लेते हैं कि BI के अंदर हमारे पास क्या क्या आ रहा है। तो देखिए 3 मोटी मोटी चीजें हैं, डेटा कलेक्शन, डेटा विजुअलाइजेशन और एक्शनेबल इनसाइट। ये अगर आप वो सीढ़ी याद कर लेंगे जो लेडर मैंने आपको दिखाई है, जो 5 स्टेप्स है, उसी में से ये 3 स्टेप्स है। सो BI इज ऑल अबाउट दिस, राइट? अब इसमें जो हमारी चीजें हैं वो कैसे होंगी, वो हम हर दिन स्टेप बाय स्टेप क्लास के अंदर पढ़ रहे होंगे, सही है जी? ये डैशबोर्ड है, हम इंशाल्लाह इससे बेहतर डैशबोर्ड बनाएंगे। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट हम अपने कोर्स में डैशबोर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड होंगे, नॉट जस्ट इन एक्सेल बट इन पावर BI एज वेल। SQL में तो हमारे पास है ही नहीं कुछ और नए प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में, बट 2 मॉड्यूल्स में हमारा पूरा फोकस डैशबोर्ड और रिपोर्ट के ऊपर होगा। तो दिस इज जस्ट अ वेरी रैंडम पिक्चर आई हैव टेकन फ्रॉम गूगल, बट विल मेक प्रॉपर डैशबोर्ड्स इन एवरीथिंग, ठीक है? नाउ लेट्स स्पेंड सम टाइम ऑन दीज इंडस्ट्री रोल्स। थोड़ा सा ये ना इम्पोर्टेंट है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सो सी हमारे पास बहुत सारी चीजें, आप लोगों की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है अगर हम बिल्कुल फ्रेश बात करें। सो आइदर अ बिजनेस एनालिस्ट और अ BI स्पेशलिस्ट, ठीक है? आप यहाँ से इधर जाओगे, इसके बाद फिर आप बनते हो डेटा एनालिस्ट, ठीक है? डेटा एनालिस्ट के बाद आप बनते हो डेटा इंजीनियर, डेटा इंजीनियर के बाद आप बन सकते हो डेटा साइंटिस्ट, और डेटा साइंटिस्ट के बाद बिल्कुल आप बन सकते हो एक एनालिटिक्स कंसल्टेंट। दिस इज द जर्नी दैट
each one of us is going to be taking. Currently मैं थोड़ा बहुत 4 और 5 के बीच में हूँ, as my personal understanding of where I stand on things. आप लोग अभी business 1 और 2 इसके बीच में, ठीक है? Now, if you look at the skills that are required for this, so as a business analyst, you need to have a business acumen, some storytelling skills, some requirement gathering, some business process mapping, right? This is the part where this is you, right? Very bad drawing, but you are talking to another human being and आप उसकी requirements ले रहे हो, सही है? So यहाँ पे आप technical हो, ये बंदा नॉन टेक्निकल है, और आप इसके जो भी वो बोलना चाह रहा है आप उसको कन्वर्ट करोगे टेक्निकल के अंदर, सही है? अब आपने उसको कन्वर्ट कर लिया। अब अगर हम बीआई स्पेशलिस्ट की बात करें तो अब जो आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट आई है, तो यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं REQ। अब जो आपकी उसकी रिक्वायरमेंट आई है, आप उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कुछ डेटा को एनालाइज करोगे। सो आप उसमें उसकी ना डैशबोर्ड करोगे, मतलब आप उसको एक अच्छे फॉर्मेट पे लेकर आ जाओगे। आप बोलोगे ठीक है ये मुझे समझ आ गया, आपने उसके ऊपर एक डैशबोर्ड बना दिया, ठीक है? So this could either be a report, सॉरी मेरी थोड़ी राइटिंग अब अजीब सी हो रही है, रिपोर्ट और अ डैशबोर्ड, ठीक है? फिर उसके बाद आपका आता है डेटा एनालिस्ट। जब आपने रिपोर्ट डैशबोर्ड बना लिया, you feel like that no more meaningful insights can be taken from it, some machine learning model can be applied, some hypothesis testing can be done। तो यहाँ पे आपके पास पे वो वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है? I'll just add ML over here, ML/any stats that you want to run, ठीक है? Then now a data engineer is someone who's completely doing or playing a different part in all of this. So for example, if I talk about Instagram, like this is IG, okay? So now IG is connected to Facebook, this is FB, okay? Now how is IG connected to Facebook? This is based on a pipeline, ठीक है? ये जो हमारी पाइपलाइन है ये हमने एक डिफाइन की हुई है। जब आप भी इंस्टाग्राम पे कभी कुछ पोस्ट करते हो तो वो आपको बोलता है कि डू यू वांट टू आल्सो शेयर दिस ऑन फेसबुक, राइट? सो वो आपस में दोनों एप्लीकेशंस एक दूसरे से बात कर रही है, दे आर कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर, बट दैट कम्युनिकेशन यू कैन नॉट सी बिकॉज दैट वाज अ पाइपलाइन सेटअप बाय अ डेटा इंजीनियर, ठीक है? सो वो आपको चीज नहीं नजर आएगी। ये हमारी एनालिटिक्स से भी थोड़ी सी चीज मुख्तलिफ है, बट वेरी हाई इन डिमांड। सो डेटा इंजीनियर का रोल बहुत बहुत ज्यादा जो है वो well recognized and not just in Pakistan but outside Pakistan as well. So a great job. अगर आपको टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट है तो आप डेटा इंजीनियर वाला रोल बना सकते हो या कैरी कर सकते हो। देन डेटा साइंटिस्ट, मैंने आपको बताया ना बहुत मुख्तलिफ रोल होता है। दिस इज अबाउट रिसर्च। तो यहाँ पर आपने रिसर्च की है, ठीक है? तो यू आर डूइंग रिसर्च इन मशीन लर्निंग ओनली, ठीक है? तो ये आपका रिसर्च वाला पार्ट आ जाता है। Then in the end, when you have so much of experience, such diverse, such various insights, mashallah, you are in a very comfortable position in your life, then you become a consultant. Because now you understand everything. So you are in a very comfortable position in order to help out other people in all of this. तो वहाँ पे फिर आप आके consultant बन जाते हो, ठीक है? So these are the roles. Now, because I am a very honest person, I'll also tell you the salary ranges कि आपको किस पोजीशन पे एक बॉल पार्क फिगर क्या मिल सकती है। सो इफ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, आप अगर बिजनेस एनालिस्ट से अपनी जर्नी स्टार्ट करो, सो सी अब तो थोड़ा सा हमारे पास इन्फ्लेशन वगैरह आ गई है, बट दिस एक्चुअली स्टार्ट्स विद 80,000, ठीक है? सो दिस इज समवेयर बिटवीन 80K to 150K आपकी फर्स्ट जॉब जो होगी। फिर आप जब उसको बीआई स्पेशलिस्ट के पास आओगे, सो दिस इज समवेयर बिटवीन 150 to 250K, ठीक है? अगर हम एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करें, दिस इज समवन हु हैज 2 to 3 years of experience, this is someone who has 1 year of experience, ठीक है? Then you become a data analyst, so this is also somewhere between 250 to, अब देखेंगे काफी बड़ी रेंज होती है बिकॉज लोग ना फिर डेटा एनालिस्ट के अंदर भी आके रुक जाते हैं। सो नॉट जस्ट टेलिंग यू द पाकिस्तानी कंपनीज सैलरीज और एनीथिंग, बट जस्ट यू नो अगर आप किसी रिमोट जॉब पे भी जाते हो तो वहां पे क्या एक्सपेक्टेशन मिल सकती है। तो इसलिए डेटा एनालिस्ट का ना यहाँ पे विंग बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ तक मैंने आपको पाकिस्तानी कंपनीज के हिसाब से बता दिया, बट अब जी फॉर एनीवन हु हैज 3+ years of experience and is also a data analyst, so this range is quite big. This can go up till 400K, ठीक है? बट डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी है या क्या है, ठीक है? 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आप यहाँ पे कह लो,
थोड़ा सा मैंने ये प्लस साइन लग रहा है बट ये प्लस नहीं है, एक्चुअली समवन हु हैज 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, आपको इतने 400K तक मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप डेटा इंजीनियर पे आ जाए, कंप्लीटली ऑफ द रिकॉर्ड, हमारी किसी पाइपलाइन से ये पास का पार्ट भी नहीं है, दिस इज द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग जॉब। ये भी आपकी सेम रेंज होती है 250 to 400, बट आप इसको 500 भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा डिमांड में है। तो ये डेटा इंजीनियर आ गया। डेटा साइंटिस्ट की भी देखें थोड़ी सी सेम ही है, दिस इज ऑल्सो 250 to 500। मैं ये आपको एवरेज एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ, फॉर समवन हु हैज मोर एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक हम में से कोई भी वहां फॉल करता है, तो उसकी सैलरी से ज्यादा ही होगी, बट ये एवरेज एक्सपीरियंस के हिसाब से सेम डेटा साइंटिस्ट के। कंसल्टेंट की तो आपको पता है, पर दिस कैन गो अप अबव 1 million एज वेल, ठीक है, बिकॉज इज समवन हु इज वेरी एक्सपीरियंस। सो ये जितनी भी सैलरीज हैं, दिस इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ 3 to 5 years, जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई एम टेलिंग यू ऑन दैट पार्ट, दीज आर बॉल पार्क फिगर्स. So when you are negotiating, you should understand the market value of things. If you ever get an interview, we can also discuss. I can share honest reviews with you about any company or the salary range as well. But see, these are the ranges. अब आपकी इसमें skill set पे बहुत define करता है, और depend भी करता है कि आप कितना आपको knowledge है और आप कितने well versed हो टेक्नोलॉजी के साथ। तो फिर काफी different factors होते हैं जिसपे ये चीजें depend कर रही होती है, ठीक है जी। Anyone has a question? Miss, I have a question. Yeah. So, Miss, I want to understand what career path did you pursue, because you are right now working with Angora as a data analyst. So, how long will it take you to get to this pathway? So, in all honesty, it took me good 3 to 5 years to reach here. I started as a business analyst. I worked as a business analyst for 2 years. फिर उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट, BI स्पेशलिस्ट, आप इसको एक ही ले लो, मैंने यहाँ पे 2 years इस पे काम किया। 1 year आई वर्क एज ए डेटा एनालिस्ट, दैट्स माय 3rd year ऑफ टोटल एक्सपीरियंस, राइट। तो मैं उसमें डेटा एनालिस्ट की तरफ मैंने माइग्रेट कर लिया था, बिकॉज एक स्पेसिफिक लर्निंग होती है, आपको एक रोल पे आके मिलती है, फिर आप you start getting bored के एक ही में काम रेपिटेटिव करे जा रहा हूँ या करी जा रही हूँ, राइट। सो फिर मैं डेटा एनालिस्ट के ऊपर आ गया। सो took me good 4 to 5 years to be in a very comfortable position in terms of my tech stack as well. क्योंकि जब आप सीख रहे होते हो तो देखिए, शुरू में तो आई वाज आल्सो क्वाइट अ बिगिनर, एंड आई डोंट नो इफ यू गाइस प्ले गेम्स टू मच, बट मैं आई प्ले क्वाइट अ लॉट ऑफ गेम्स। सो उसमें आपके पास जो है ना, वो बॉट्स भी आ रहे होते हैं, उसमें आपके पास नूब्स भी आ रहे होते हैं, उनको कैटेगराइज कर रहे होते हो, ठीक है। सो आई वाज आल्सो लाइक अ बॉट व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, राइट। सो लेफ्ट, राइट एंड सेंटर पीपल वर हिटिंग me. And technology is so evolving that it's just not people who are hitting me left, right and center, but also technology. कि अभी मैं अपना एक टेक स्टैक अपना बेहतर करती थी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक्सेल के ऊपर ग्रिप ली है, तो अब आगे मेरे से रिक्वायरमेंट है कि मैं पावर BI पे भी अच्छी ग्रिप लेके आऊँ, ठीक है। सो examples like this, it's the best way to understand. I think relatability example से ही ना ज्यादा अच्छी बनती है, so you will always find me giving fun examples. So inshallah we will also have a lot of fun in all of these classes, but telling you very honestly that it took me a long time to get here, and चीजें बहुत चेंज हो रही हैं। तो एक तो खुद की आपकी देना डिटर्मिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आगे कितनी तरक्की हासिल करना चाह रहे हैं अपने लिए, या अगर आप बस एक मामूली सी जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं, you are going to job and you are getting paid for it, that's fine, but I am someone who is very ambitious, right? तो मुझे अपने आप को काफी टेक्नोलॉजी के साथ साथ ग्रूम भी करना पड़ा। सो सी, जब चैट GPT आया, लोगों को बहुत टाइम लगा चैट GPT पे आने पे। आई वाज द वन हु स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद GPT ऑलरेडी, एंड GPT के अंदर भी बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में व्हेन आई विल आस्क यू गाइस टू सेट इट अप एज वेल, यू विल आल्सो लर्न दैट हमें पता नहीं होता, बट चीजें इतनी पीछे चल रही होती हैं। सो अगर आपके अंदर ये कीड़ा है जो मेरे अंदर है कि टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करना और उसके साथ साथ चलना है, तो इंशाल्लाह विद दैट पेस 3 to 5 years इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच वेयर आई एम, ठीक है, इन ऑल ऑनेस्टी। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूँ नहीं आप 2 साल में पहुंच जाएंगे, मैं तो फिर झूठ बोल रही हूँ, लेकिन नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम लगेगा वो कॉन्सेप्ट्स और वो ग्रिप हासिल करने में। वो ओवर द टाइम पीरियड बनती है। वो लोग ऐसे ही कहते हैं 6 महीने में आपको एक स्किल आ जाती है, ऐसा नहीं होता, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है वो सारी चीजें सीखने के लिए। तो हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करेंगे, बट 3 to 5 years तक यू कैन रीच दिस पार्ट, ठीक है। आई होप आई वाज एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन।
right? So we also have a question from Hamza. Hamza, you have raised your hand. Okay, any other questions? Okay, no such one. ठीक है. So guys, these are the industry roles. This is very important. मैंने काफी इसलिए आपको जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं और सैलरी रेंजेस भी बताए हैं ताकि एक आइडिया हो जाए. ठीक है. टेक स्टैक यही है जो रिक्वायरमेंट है. इसके अंदर चीजें हमारी ऑफकोर्स अब एडवांस बढ़ती जा रही हैं, तो वो आपको साथ साथ सीखनी पड़ेगी. ठीक है. अब हम आ जाते हैं कि हम लोग क्या सीखेंगे इस पूरे कोर्स में. ठीक है. तो हम लोग एक्सेल सीखेंगे, हम पावर बीआई सीखेंगे, हम एसक्यूएल सीखेंगे, हम ऑरेंज सीखेंगे और हम गिटहब सीखेंगे. पावर बीआई पे जो हमारा पोर्टफोलियो बनेगा वो नोवी प्रो पे होगा. तो वो भी एक चीज है जो हम करेंगे, बट वो हमारा टूल नहीं है, बस वो पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए एक रिक्वायरमेंट. तो आप पावर बीआई पे वहां से नोवी प्रो को कनेक्ट कर रहे होगे. सही है जी. इस पे एग्जाम्पल लिखिए. पर्पस, आई थिंक यू गाइस आर वेरी स्मार्ट इनफ ऑलरेडी. आई डोंट नीड टू टेल दिस पार्ट, बट ये हमारे मोटे मोटे टूल्स हैं. ठीक है. और हम एआई टूल्स क्या यूज करेंगे. So we are going to be using, of course, ChatGPT quite a lot. ठीक है. जो हमारे Microsoft के ecosystem के वहाँ पे Copilot है. So if you already have a license, then great. If you don't, then that's fine as well. We'll find an alternative. SQL के अंदर हमारे पास SQL AI है, Blackbox है, Claude है, और भी और चीजें जिस पे आप कोड आप कर सकते हो. तो हम SQL में वो करेंगे. एंड ऑरेंज के लिए भी आई टेल यू सम एआई टूल. तो हम अपने पूरे इस बूट कैंप पे एआई टूल्स को बहुत ज्यादा रेलेवेंस देंगे, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला, आप यू हैव टू वर्क विद टेक्नोलॉजी. इफ यू आर नॉट इवॉल्विंग, यू आर जस्ट मिसिंग आउट ऑन थिंग्स. सो हम इसमें हर चीज पे एआई को इंटीग्रेट करेंगे. So in every class we are going to be learning something new about AI and analysis as well, both of those things, right? ठीक है. अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि अब हम अगले हफ्ते क्या सीखने वाले. तो हम लोग जो है वो केगल का ओवरव्यू करेंगे. ठीक है. आई टेक 15-20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, वरना पे वो बहुत डिटेल सेशन हो जाता है. हम डेटा सेट डाउनलोड करेंगे. हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हम किस तरीके से एक मेसी डेटा को क्लीन करेंगे. एंड हम डेटा क्लीनिंग के ऊपर फोकस करेंगे. इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो हम पावर क्यूरी देख लेंगे, दोनों चीजें कैसे होती हैं. अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पावर क्यूरी को देखेंगे. बट इट्स गोइंग टू बी अबाउट एसक्यूएल फंक्शंस, डेटा क्लीनिंग एंड एवरीथिंग. सो वेरी बेसिक क्लास. जिनको एक्सेल नहीं आती है, जिनके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा, तो हम इसको फ्रॉम स्क्रैच ही लेके चलेंगे. अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज आगे में निकल गई हो, नहीं समझ आई, तो आप यू कैन फील फ्री टू स्टॉप मी ओवर देयर एंड आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट. सही है. सो दिस इज द एजेंडा. मैं प्रॉपरली हर क्लास से पहले व्हाट्सएप पे मैसेज भी करती हूँ कि ओवर द वीकेंड हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी जो है वो आइडिया हो जाए. एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग non-stop to me. I think it has been 1 hour 45 minutes roughly. So thank you so much, for taking out the time and for listening so much and being so respectful and asking questions. I always love answering questions. So जितने सवाल आप पूछोगे मुझे भी मजा आएगा क्लास में engage होने के लिए. हम लोग क्लास में ब्रेक नहीं लेते. So let me stop presenting as well. So हम लोग इतनी जो है ना वो क्लास में ब्रेक नहीं लेते. बीच में नमाज की होती है, बट आई थिंक हमारा देख लेंगे कि किस तरीके से अगर 5-10 मिनट लेनी है. अदरवाइज आई यूजुअली एंड द क्लास 15 मिनट्स बिफोर, लाइक 1:45-1:40 तक हम, क्योंकि नॉन स्टॉप पढ़ रहे होते हैं, तो हम उसमें फिर थोड़ा क्लास को अर्ली ऑफ कर देते हैं. सो इस तरीके से हम अपने क्लास को स्ट्रक्चर करेंगे. जहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल होगा तो आई विल ट्राई टू बैलेंस इट आउट विद सम फन and some conversation, क्योंकि फिर वो थोड़ी सी चीज ड्राई लगने लगती है, तो फिर इंटरेस्ट वहाँ पे डिविएट हो जाता है. So I've been a student myself. I completely understand, how human brain works, especially students का दिमाग कैसे चलता है. तो I'll try my level best कि हम इसको as engaging as possible रखें. ठीक है. So that is all from my end, and I will see you next weekend inshallah, same time, and we will learn about Excel. ठीक है. आप लोग भी 12:05 तक ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम लोग फिर ऑन टाइम स्टार्ट करें. तो जितना हम जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी हम 1:40 तक क्लास को भी रैप अप कर सकते हैं फिर. ठीक है. अदरवाइज इफ स्टार्टिंग एट 12:10 तो फिर क्लास भी फिर लेट हमारी जो है ना एंड हो रही होती है. ठीक है. चले, दिस इज इट गाइस. थैंक यू सो मच. सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.